All right, Zainba, you ready? Yep. All right. Assalamu alaikum, namaste, sat sri akal. Welcome to Dream Media Radio in collaboration with Powerplay Media. For those of you that don't know, Dream Media is one of the leading event companies in Canada. They take pride in helping small businesses in their events set up shop and make a name for themselves. But today, we're doing none of that. We are going to be discussing one of the greatest rivalries in all of sport. Pakistan versus India in less than 24 hours away. At one point, we thought there was going to be no match. At one point, we thought there was going to be no handshakes. But in the last couple of days, there has been a union. Both boards have gotten together, and for the love of the game, for the love of the fans, the match will be taking place. Zain Bhai, welcome to the podcast. So good of having you. Welcome. Thank you to the Dream Media team and giving us a great platform in setting up this show. So let's get started. Big match. Uh, Are you excited for tomorrow's game, brother? Obviously, yeah, it's a big match. Pakistan India rivalry, it's coming like since my childhood. So, वेट करने के लिए तो ऐसा होता है कि बस आज ही हो जाए मैच. तो अब 15th फाइनली द मैच इज है. लाइक कितने घंटे रह गए. कुछ कुछ घंटे ही रह गए बस मैच शुरू होने में. तो मजा तो बहुत आएगा. और इस मैच का वेट कौन नहीं करता, हर कोई कर रहा होता है, इंडिया पाकिस्तान इवन. अब तो ये मैच देखने के लिए जितने भी लोग हैं अराउंड द ग्लोब, सब वेट कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो. तो ऑब्वियसली मजा आता है मैच देखने में. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान इंडिया का मैच, क्योंकि T20 खास तौर पे, क्योंकि वो लास्ट बॉल तक भी चला जाता है. तो Yeah. ऑब्वियसली इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट. Yes, sir. So, ICC T20 2026 वर्ल्ड कप का सबसे पहला मैच था पाकिस्तान अगेंस्ट नदरलैंड्स. उस या वक्त पाकिस्तानी फैंस को क्लैरिटी नहीं थी कि अगर हमारा मैच होगा भी इंडिया के खिलाफ. सो वी हैड टू विन दैट मैच नो मैटर व्हाट. वो एग्जैक्टली. मैच हम हारने लगे थे क्योंकि एक बिल्कुल. तो नदरलैंड टीम ने भी बहुत अच्छा खेला था और उनकी बैटिंग भी इम्प्रेसिव थी. उन्होंने हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को पहले ही बॉल से ही अटैक कर दिया था. पहले बॉल ऑफ बिल्कुल. इस टूर्नामेंट में हमने चौका खा लिया था. तो इंटेंट बिल्कुल. फ्रॉम नदरलैंड्स वाज ग्रेट. वो मैच पाकिस्तान जीत गया आखिरी मौके में. फहीम अशरफ आया, उसने सेकंड लास्ट ओवर में 3 सिक्सेस लगा दिए. बहुत प्रेशर सिचुएशन में पाकिस्तान को अपनी फर्स्ट विक्ट्री दे दी. इवन और इवन इसमें एक चीज और ऐड करते हैं कि उसी ओवर में फहीम अशरफ जो है, वो फर्स्ट सिक्स के बाद सेकंड बॉल पे कैच ड्रॉप भी हुआ है उसका. तो यस. अ, तो वो भी एक बहुत टर्निंग पॉइंट था मैच का, कि अगर वो विकेट आती नेदरलैंड के पास तो ऑब्वियसली पाकिस्तान वो मैच नहीं जीत सकता था. बहुत मुश्किल था. वो मैच निकल चुका था हाथ से. Yes, absolutely. Pakistan cricket has this saying. It's called "Kudrat ka Nizam." We've seen it. एग्जैक्टली. We've seen the Netherlands do it for us in the past, and this या. time we had to do it against them. So Kudrat ka Nizam lives on. Everyone that ever doubts it, don't doubt it. It always comes back. जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है तो कोई जब जीतना होता है ना तो इम्पॉसिबल जगह से भी जीत जाते हैं. और जब बिल्कुल. हारना पड़ता है तो जीती हुई पोजीशन से भी पाकिस्तान हार सकता है. हार जाता है, So बिल्कुल. after that game, Fahim Ashraf gave Pakistan one of their best victories in a World Cup, chasing a good total. The next एग्जैक्टली. match was India against the United States. Now, look, या. the United States is a new team in cricket at the highest level, but they have एग्जैक्टली. shown time and time again that they can give a very tough fight to the big dogs. They have beaten Pakistan in a super over in a World या. Cup before, and you या. know what? They had India 90 for 6. So एग्जैक्टली. जब पाकिस्तान नेदरलैंड्स के खिलाफ खेल रहा था तो our Indian brothers and sisters were enjoying our downfall. But या. again, the US played India, we were enjoying your downfall. So we've learned two things. We've learned that both Pakistan and India can show vulnerability against एग्जैक्टली. associates, but we've also learned that the associate nations now can give a big fight to the top contenders. So both Pakistan and India must have seen the weaknesses that both sides have. I think India की जो बैटिंग है इस बार स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है और पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं इस बार इतने पोटेंट प्रीमियम. नहीं हैं. Yeah, those premiums, right? Yes, sir, the premium ones. So it's gonna be a very tough matchup because both sides have shown vulnerability. Where do you think are Pakistan's keys
of exploring India's weaknesses? Pakistan, I guess the bowling line of Pakistan is more impressive than India, you know. Or India have a good, really good lineup of for the batsmen because उनके इवन अगर ओपनर्स और फिर उनके मिडिल ऑर्डर इट्स आई रियली लाइक देम उनकी बैटिंग लाइन अच्छी है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन भी अच्छी है लेकिन यू कैन से कि इंडिया इज लाइक इंडिया की बॉलिंग जो है वो आई गेस के थोड़ी सी कम है पाकिस्तान से क्योंकि पाकिस्तान के पास जो स्पिनर्स हैं इवन और अभी जो पाकिस्तान के बॉलर्स की फॉर्म है उस्मान तारिक है अबरार है जो स्पिनर्स के अंदर है इसी तरीके से हमारे पास क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स ज्यादा हैं साइम अयूब हैं नवाज हैं और उसके बाद अगर हम पेसर्स पे आते हैं फास्ट बॉलिंग में आते हैं तो नसीम शाह है सलमान मिर्जा बहुत अच्छी फॉर्म में है तो आई गेस के इंडिया की बैटिंग लाइन जो है वो पाकिस्तान से बेटर है लेकिन सेम टाइम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन इंडिया से बेटर है तो इट डिपेंड्स और ऑब्वियसली इतना बड़ा मैच है तो उसमें फिर प्रेशर भी है वो जो प्रेशर है वो कौन जो भी टीम उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करती है ऑब्वियसली गुड गेम फिर देखने को मिलेगा और वही टीम जीतेगी भी ऑब्वियसली ये बिल्कुल आपने सही बात की है लेकिन अगर हम पास्ट ट्रेंड्स देखें सो वी हैव सीन के जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं दे हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स आई डोंट नो इफ कुलदीप यादव इज इन दिस वर्ल्ड कप लेकिन आई डू नो कि उसके खिलाफ पाकिस्तान टाइम एंड टाइम अगेन स्पेशली बाबर आजम हैज स्ट्रगल्ड हमने या ये भी देखा है इस वर्ल्ड कप में कि पाकिस्तान ने अभी तक ख्वाजा नाफे को चांस नहीं दिया एग्जैक्टली Usman Khan has played for Pakistan, and in his first two games this World Cup, he has scored nothing more than zero, नथिंग unfortunately. एग्जैक्टली So I don't think he should be selected tomorrow if Pakistan want to win the game. Other या than that, Shaheen, to humne baat kar liya, he's not been there, but there is one more Pakistani cricketer that we need in our team, and that will have to be Khawaja Nafi tomorrow. या And Khawaja Nafi is one of those examples of a Pakistani cricketer. We don't know his first class record, but we know he's good. We've seen या this in the past. In the 1990, the fans love talking about 92. So या we've seen in Pakistan will get someone out of the blue, for example, Inzamam, for example, Fakhr Zaman, and turn these guys into superstars overnight. So I think that Khawaja Nafi is that guy. He can do wonders for Pakistan, and I think he will. We need aggression in our middle order as well. It can't just be our openers. So या I दे think शुड Pakistan गिव has to play him. या बिकॉज यू नो जब इतना बड़ा इवेंट होता है और वर्ल्ड कप राइट इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल कोई लीग है या कोई नॉर्मल कोई आपकी ट्राई सीरीज ही है ये एक वर्ल्ड कप है तो जब आप इसमें कोई भी टीम लेके जाते हैं राइट तो वो जो टीम आप लेके जाते हैं उसको आपने फिर पूरा वैसे खिलाना भी है इट्स नॉट लाइक कि आप एक पहला मैच वर्ल्ड कप का एक टीम से खिला रहे हैं और उसके बाद आप फौरन ही फॉर द सेकंड मैच या थर्ड मैच आप उसको चेंज कर देते हैं ऑब्वियसली ख्वाजा नफे के लिए एक बड़ा इवेंट है बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड कप और उसके बाद फिर वो अंडर 19 से आया है उसने खेले हैं पास्ट मैचेस उसकी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उसकी इवन अभी अंडर 19 की परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त रही है ख्वाजा नफे की तो बहुत अच्छी बात है कि उसको एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ खेलने को मिल रहा है इतना बड़ा इवेंट तो ऑब्वियसली वो परफॉर्म करेगा लेकिन क्योंकि वो उस्मान की जगह पे अगर खेलता है वो तो आई थिंक कि वो ज्यादा डिजर्व करता है खेलना और उसके बाद आई थिंक कि इसकी जो बैटिंग है जो जो टेक्निक्स ये यूज करता है अपनी बैटिंग में ख्वाजा नाफे तो आई गेस के वो बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है रन्स के लिए फिर दूसरी इट्स नॉट जस्ट बैटिंग राइट हमें विकेट कीपिंग भी चेक करनी है कि हु इज द बेटर वन राइट तो आई थिंक आई विल गो फॉर ख्वाजा नाफे अच्छा फॉर द ख्वाजा विकेट नाफे कीपिंग आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में ये होगा विकेट ठीक है या बॉल इसके लेफ्ट हैंड में है उसने राइट हैंड से रन आउट कर दिया और एग्जैक्टली अंपायर ने आउट भी दे दिया सो आई डोंट नो आई इफ कीपिंग इज गुड क्योंकि दैट वाज द वर्ल्ड कप फर्स्ट में वो टाइम चेक यू नो करेंगे
एग्जैक्टली exactly. और फिर उसके बाद पता चला, काफी लोगों को ये बात ही नहीं पता थी कि इट्स लीगल, राइट। और Absolutely. क्या I कहते हैं, mean, वो एक नई technically, चीज। it's technically not illegal. It's invalid. You have the या right to do it, but it's just not going to एग्जैक्टली, be out. एग्जैक्टली। और वो उसको ऑब्वियसली वो बेनिफिट था उनको, वो और पाकिस्तान जीती उससे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉलिंग लाइन ऑफ पाकिस्तान? On paper, our bowling lineup is always good, but then या again, I think it's also not been utilized well. अब देखें साइम अयूब को आपने नीदरलैंड के मैच में एक ही ओवर दिया था, वो भी शायद एग्जैक्टली, 17 या 16। उस ओवर में उसने 7 रन बस खाए हैं और 2-3 विकेट भी ली एक ओवर एग्जैक्टली, में। तो बिल्कुल ऐसे ही है। it's not about the bowlers. The bowlers are always good. It's about the utilization. अगर शाहीन अपने पहले ओवर में मार खा रहा है तो आप उसको सेकंड ओवर ना दो, आप एक रिस्क लो, आप एक स्पिनर को ले आओ, क्योंकि हम श्रीलंका में बिल्कुल, खेल रहे हैं जहाँ बिल्कुल, स्पिनर्स को मिलती है लेवरेज। बिल्कुल एट द सेम टाइम अभी तक हमने नसीम शाह को टेस्ट नहीं किया। नहीं अगर किया। आप जिम्बाब्वे वाला मैच चेक करेंगे, यू विल नोटिस दैट इन द अर्ली ओवर्स देयर इज रूम फॉर फास्ट bowlers. The बिल्कुल, ball does move a lot. Now Shaheen has बिल्कुल, not been getting that movement, so we have to take chances on other players because we've seen now कि इंडिया के जो टॉप बैट्समैन है उनने भी शाहीन की एक्सप्लॉइटेशन की हुई है। बिल्कुल, अभिषेक बिल्कुल, शर्मा ने उसकी वो एक्सप्लॉइट किया है, उसको एक पहले बॉल पे भी छक्का लगाया हुआ है। तो बिल्कुल, they will have a good read on Shaheen. They know. Ab dekhein, it takes no rocket scientist to know that Shaheen Afridi is trying to ball full balls early on. Any top contending team will have adjustments. They'll come down the track. There'll be premeditating shots for that sort of length. So बिल्कुल, Pakistan needs to be 2, 3 steps ahead. Either you open the bowling with someone else. You have Naseem Shah. I maybe take a risk. India has a left-hander. Maybe bring a spinner and off spinner. You have to do something different because the top team like India, they take pride in their work and in their planning. And नजर आता है क्योंकि प्लानिंग हुई है। अभिषेक शर्मा बिल्कुल, अगर आपको पहले बॉल पे छक्का लगा रहा है, इसको तुक्का नहीं कह सकते आप, इसको आप कहते हैं ऑब्वियसली या प्लानिंग। बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक प्लानिंग है। और ऑब्वियसली कल के मैच में बुमराह भी खेल रहा है, राइट, और यू बाय हैव द वे हर्ड। पाकिस्तानी फैंस जो कह रहे हैं ना कि हमने बुमराह को चक्के लगाए, भाई बिल्कुल नो, लगाए हैं। ये T20 क्रिकेट है, किसी को भी चक्के लग सकते हैं, लेकिन ये ना भूलो बिल्कुल, कि बुमराह इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट bowlers of our generation in T20. He नो can डाउट। ball now. No, I'm saying no doubt. That's no doubt. Yeah. Obviously, yeah, because if we talk about Shaheen, right, world class bowler, लेकिन दुर्गत बनी थी ना उसकी, खाए थे ना उसने, ठीक ठाक छक्के चौके सब खाए थे उसने, राइट। तो ये प्रिडिक्ट करना पहले से, ऑब्वियसली वो अभी फॉर्म में नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ही विल बी टेकिंग लाइक 4 5 विकेट्स इन दिस मैच, बट स्टिल बुमराह, ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, यू कैन से, राइट। फॉर्म, हर किसी की एक फॉर्म होती है और उसकी एक लिमिट्स होती है, राइट। हर बंदा, हर प्लेयर जो है वो हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा ये हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और हर किसी के मैच की एक लिमिटेशंस होती हैं, परफॉर्मेंस की लिमिटेशंस होती हैं, उनकी हेल्थ के हिसाब से होती हैं, राइट। तो वो जरूरी नहीं है कि वो अपना हेल्थ चेक करवा के और वो फिर मैच खेलने आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो परफॉर्म्ड है, राइट। वो परफॉर्मेंस देंगे अपनी 100%। होता है, बिल्कुल, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो पास में भी गुजरे हैं, उनका एक डाउनफॉल आता है। जैसे कि विराट कोहली का आया था बीच में, बाबर आजम का काफी आया था, वो मैं तो तो खुश हूं अ, कि विराट कोहली वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। थैंक यू टू द इंडियन टीम सिलेक्टर्स जिसने उसको बाहर किया है। आप लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर नॉट सेलेक्टिंग विराट कोहली एंड मेकिंग हिम रिटायर्ड। थैंक यू सो मच। या बिल्कुल। और उसके बाद फिर आई थिंक कि जो पांड्या है, हार्दिक पांड्या, उसका बहुत एक मेन रोल होता है पाकिस्तान इंडिया मैच में, मिडिल ऑर्डर, राइट, और इवन बॉलिंग में भी। तो आई थिंक कि इंडिया की टीम, इट्स नॉट लाइक के परफॉर्मेंस हर किसी की अप एंड डाउन होती है, हर टीम की होती है, राइट। लेकिन इंडिया, आई थिंक कि उनकी टीम भी और पाकिस्तान की अब जो टीम है उसको अगर हम देखते हैं दोनों टीम्स को, तो आई गेस कि बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है। इट्स नॉट बीन लाइक अ वन साइडेड मैच, लेकिन
मजा बहुत आएगा मैच में, क्योंकि हमें टॉप क्लास इंडिया की और पाकिस्तान, बोथ ऑफ देम, हमें एक्चुअली दोनों की जैन भाई, बॉलिंग देखने को मिलेगी। सॉरी टू इंटरप्ट, शायद मजा बिल्कुल ना आए क्योंकि न्यूज ये भी आ रही है कि शायद कल बारिश भी हो सकती है, तो शायद ये यार भी हो कि इतनी हाइप के बाद बारिश ही हो जाए। बारिश नहीं हो बस, क्योंकि ऑब्वियसली वो सारा मजा खराब हो जाता है, हम इतने अरसे से वेट करते हुए आ रहे हैं Yeah. ऑब्वियसली। और फिर इतना बड़ा मैच और उसमें अगर बारिश होती है ना, तो वो फिर मजा नहीं आता। लेकिन होप्स हो कि मैच पूरा ही हो, उसमें ओवर्स ये उसमें बीच में ओवर्स कम ना ना हो, प्रॉपर तरीके से जो है वो सारा कुछ हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन मजा बहुत आएगा मैच में, बस मैच होना चाहिए। और दूसरी एक और चीज है कि आई डोंट नो कि अभी इनका जो इंडियन टीम्स की क्या स्ट्रेटेजी है, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आई हैवंट सीन एनीथिंग रिगार्डिंग द पिच, द ग्राउंड पिच, व्हाट इज मैं सेइंग। आपको ये बता सकता हूँ कि इट विल बी एग्जैक्ट सेम पिच दैट वाज यूज्ड फॉर द मैच अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर देयर ओके। वाज, it was a very balanced pitch, to be honest. It didn't favor one specific नो sort of नो 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 नो, इट्स परफेक्ट, बिकॉज अगर वो सिर्फ बॉलिंग पिच होती तो आई डोंट थिंक कि जिम्बाब्वे जो है वो 170 स्कोर 169 स्कोर कर सकता था, yeah. राइट। और अगर वो बैटिंग पिच होती तो ऑब्वियसली जिम्बाब्वे इतनी विकेट्स, इतने उनके इतने बॉलर्स जो हैं वो इतनी विकेट्स कभी भी नहीं ले सकते थे। So तो as the match goes on in Sri Lankan pitches, the cracks get heavier. So the बिल्कुल, longer the match goes, the more advantageous it is for the bowlers. So फॉर द early on, बॉलर्स, या। if you are going to win the toss, it's in your best interest to bat first because there'll be less cracks on the pitch, and एग्जैक्टली। there might be some room for fast bowlers early on. Like in batting first is the right लेटर thing ऑन to do. इट्स फॉर द स्पिनर्स, या। Also, for all our new viewers tuning in, welcome to the Dream Media Radio. I'm your host Maher Iqbal. Joining me is Zain Bhai. We are talking about the Pakistan-India match, which will be taking place tomorrow. So, welcome to our new viewers. Zain Bhai, with that being said, I want to put you in a. I want to ask you a question. मैं follow कर रहा था news और पाकिस्तान का top former legend मोहम्मद आमिर ने बोला है कि अभिषेक शर्मा is just a slogger. What do you have to say about that? About Abhishek Sharma, क्योंकि right? मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी फॉर्म काफी इनकंसिस्टेंट इन द सेंस कि बहुत अच्छी शानदार इनिंग्स भी खेल रहा है और बिल्कुल, डक पे भी काफी बार आउट हो बिल्कुल, गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इट ऑल डिपेंड्स, जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर, राइट। अगर कोई भी प्लेयर, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो या कोई भी बड़ा प्लेयर हो, अगर वो प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तो आई डोंट थिंक कि वो कोई ज्यादा स्कोर करेगा, या फिर वो जल्दी आउट हो जाए, राइट। इसी तरीके से बिल्कुल सही कहा कि जो अभिषेक शर्मा है वो अभी उसकी वो एक जो बैटिंग कंसिस्टेंसी है वो एक प्रॉपर तरीके से हम नहीं देख रहे उस चीज को। वो आइदर इट्स डक और आइदर इट्स 50 और समवेयर लाइक 70 और 80 रन्स, राइट। या तो मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक एटलीस्ट जिस परफॉर्मेंस में अभी वो चल रहा है, तो आई गेस क्योंकि अभिषेक पाकिस्तान के अगेंस्ट में अच्छा खेला है, हमें ये नहीं वो भूलना चाहिए। हमारे उनके साथ 3 मैचेस हुए थे एंड बिल्कुल, इंडिया डिड बीट अस 3 times successfully. बिल्कुल, बिल्कुल, Despite a lot of controversy in some of the games, people did have complaints about umpiring, but no, in the end, India deservedly won that. लेकिन we also saw कि पाकिस्तान उनको एक्सप्लोइट कर सकता है। हमने अभिषेक को बिल्कुल, जल्दी भी आउट किया हुआ है बिल्कुल किया हुआ, और हम बिल्कुल किया लोगों हुआ। हमारी बैट्समैन ने उनके बॉलर्स को भी अटैक किया। सो अगेन पाकिस्तान डिस्पाइट लूजिंग दोस 3 games हैज शोन कि अगर वो अपना गेम लाएगा, अपनी पोटेंशियल से खेलेगा, वो भी इंडिया की तरह टॉप टीम को एक्सप्लॉइट कर सकता है। कर बट सकता, अगेन बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जो प्रेशर अच्छा हैंडल करेगा वो ही जीतेगा। लेकिन बिल्कुल, इन स्पोर्ट्स देयर इज आल्सो अदर फैक्टर्स। नाउ ये भी है कि ज़ैन भाई, इंडिया ने एक भी मैच श्रीलंका में नहीं खेला। हम लोग, बिल्कुल, हमारे पास एडवांटेज ये है, हमने एक सीरीज भी श्रीलंका में खेली है वर्ल्ड कप से पहले बिल्कुल, और हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में ही खेल रहे हैं। सो लॉजिकली स्पीकिंग, इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान डज होल्ड ए मेजर एडवांटेज। नाउ एक बंदे की हमने बात करनी है हु हैज़ बिन ऑल ओवर सोशल मीडिया, उसके बारे में इंडिया की पूरी पब्लिक बात कर रही है, काफ़ी लोग उसको चक्कर भी बुला रहे हैं, लेकिन आईसीसी ने कोई अभी तक वो बात नहीं की। मिस्टर उस्मान तारिक साहब, कल बिल्कुल, उस्मान तारिक का जो मैचअप होगा ना इंडिया के खिलाफ, दो इन माय ओपिनियन दो चीज़ें होने वाली हैं। या तो हम्म, इंडिया के जो बैट्समैन है वो उसको खेल नहीं पाएंगे बिल्कुल,
या हम्म, उसको पहले से ही अटैक कर देंगे तो उसको बॉलिंग ज़्यादा ना मिले, क्योंकि आपने अगर उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी तो वो आपको आउट कर सकता है। तो आई बिल्कुल थिंक द मैचअप बिटवीन द इंडियन बैट्समैन एंड उस्मान तारिक will be a very big matchup. The problem बिल्कुल is Usman Tariq is playing his very first game at highest pressure you can ever play. The Indian बिल्कुल batsmen, all of them have played at high pressure before, but at the same time, no one has yet picked Usman Tariq's deliveries really well. He's always बिल्कुल every match he's played, he's got a wicket in so far. Every single match उसने खेला है ना, उसने कम से कम 2 wickets विकेट्स लिए, ली ली हैं. ली है So बिल्कुल। how do you see the matchup between Usman Tariq and India tomorrow? उस्मान तारिक तो एक की बॉलर है पाकिस्तान के पास इस वक्त, अगर हम देखते हैं इन स्पिनर्स, राइट। और नहीं, यूपी का भी श्रीलंकन अच्छा है जी, पिचेस, अबरार भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस्मान हाँ, तारिक इज द वन लेकिन हु नोज हाउ टू प्ले यार. बिल्कुल, क्योंकि वो उसकी जो परफॉर्मेंस अभी हम देख रहे हैं, या हम पास्ट जो मैचेस से हम देखते हुए आ रहे हैं, राइट, तो वो मैचेस जो है वो बेसिकली सारे मैचेस के अंदर बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। एक ये चीज है। दूसरी चीज, क्योंकि श्रीलंकन पिचेस जो हैं वो स्पिनर्स को वैसे ही सपोर्ट करती हैं, अपार्ट फ्रॉम द फास्ट बॉलर्स, राइट। थर्ड चीज, अगर हम देखते हैं कि उस्मान तारिक अगेंस्ट इंडिया क्या परफॉर्मेंस दे सकता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर इंडिया, आई गेस के इंडिया को मुझे जो लगता है कि इंडिया जो है वो कोशिश यही करेगा कि वो फॉर द वेरी बिगनिंग वो उस्मान तारिक के ओवर से जब स्टार्ट करते हैं, तो आई गेस कि वो उसको हिटिंग से ही स्टार्ट करेंगे, मुझे भी राइट। ये लग रहा है अटैक करेंगे बिल्कुल, तो जरूर करेंगे. क्योंकि ऑब्वियसली उनको प्रेशर मेंटेन करना होगा कहीं ना कहीं। अगर उनकी कोई भी विकेट जाती है उसमें, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर पे इंडिया के ऊपर आ जाता है, एक बॉलर प्रेशर जो होता है। दूसरी चीज के लास्ट जो हमने मैचेस देखे हैं उस पिच पे, और इवन अगर हम जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हैं, जिसमें इवन फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग बोथ, जो उनके स्पिनर्स थे, इवन फास्ट बॉलर्स भी और उनके स्पिनर्स, उसके अंदर जो बॉल था, इन स्विंग आउट स्विंग, इट वाज लाइक मैसिव। मतलब वो पिच जो है वो मैं बोलता हूँ कि आई गेस के उस्मान तारिक के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है जिस तरीके की वो बॉलिंग करता है, राइट। सेकेंड ऑफ ऑल, उस्मान तारिक क्योंकि बीच में अभी अश्विन का एक स्टेटमेंट मैंने देखा था, राइट, उस्मान तारिक के लिए, तो उन्होंने भी यही कहा था कि एक तो ऑब्वियसली हम एक्शंस की बात कर रहे थे पहले कि ये लीगल है या लीगल नहीं है, तो वो सारी चीजें तो वैसे ही पहले पहले ही क्लियर हो चुकी हैं सारी, राइट। तो इनफैक्ट मैं आपकी इवन बात पे ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट सर. फॉर ऑल द पीपल वाचिंग, Anil Chaudhary is one of the most recognized umpires in the world. He's बिल्कुल almost a guy, when he speaks, it's considered testimony. उसकी जो बिल्कुल बात होती है लोग उसको फैक्ट से एसोसिएट करते हैं. राइट अनिल चौधरी ने बोला है, in his analysis, Usman Tariq's action is correct. It is या within the guidelines of the ICC. His bend is less than 15 degrees, which is allowed for spinners in cricket. So, for those of the people that have had complaints, whether it's been Cameron Green, public in countries that have said that Usman Tariq's action is inadequate, Anil Chaudhary, who is one of the great umpires of cricket, has said that his action is legit. Anyways, लीगल, yeah, या back to your point, sir. या दैट्स करेक्ट। एंड ऑल्सो जो इसमें सबसे मेन चीज जो उस्मान तारिक को अभी कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा, सबसे मेन चीज है पिच, क्योंकि ये उस्मान तारिक के मतलब की पिच है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। सेकेंड ऑफ ऑल, उस्मान तारिक की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग इन सारे मैचेस, ठीक है, Every match he takes a राइट, wicket. Yeah. एवरी मैच, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे हमने पहले भी ये बात शेयर की है, कि इंडिया अटैक करेगा स्टार्टिंग में ही, उस्मान तारिक को एटलीस्ट, क्योंकि वो प्रेशर डेवलप होने देंगे नहीं, राइट। लेकिन लेट सपोज के अगर इंडिया की कोई विकेट जाती है इन स्टार्टिंग में, या फिर उस्मान तारिक अगर कोई विकेट लेता है, तो आई गेस कि फिर वो प्रेशर जो है वो सारा इंडिया के ऊपर आ जाएगा। Mhm. और मुझे, मैं दो प्लेयर्स के लिए मैं कल बोल सकता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट टू टू प्लेयर्स फॉर ईच टीम, राइट। तो दो प्लेयर्स हम लेते हैं इंडिया के, और दो प्लेयर्स हम लेते हैं पाकिस्तान टीम के, आइदर इट्स बैट्समैन और बॉलर्स, व्हाटएवर, राइट।
तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम में उस्मान तारिक और साहिब ज्यादा फरहान, Yeah. 2 प्लेयर्स, राइट। और इंडिया में आई गेस के मुझे ऐसा लगता है कि बुमराह, राइट, एंड द सेकंड वन इज अभिषेक। ठीक है, मेरे लिए इंडिया की जो टीम है ना, आई थिंक पाकिस्तान ने बुमराह को एक्सपर्ट किया हुआ है। आई थिंक हमारे पास, जैसे उनको पता है ना शाहीन अपनी फुल बॉल करवाएगा, हमारे पास बिल्कुल भी बुमराह के खिलाफ प्लानिंग है। वी प्लेड हिम वेरी बिल्कुल लॉन्ग नाउ। बिल्कुल 2017 चैंपियंस ट्रॉफी से हम बुमराह के खिलाफ compete कर रहे हैं। एंड यू नो, द बिल्कुल। लॉन्गर यू प्ले अगेंस्ट योर ओपोनेंट, you have a better read on him. This is just sport. When you बिल्कुल play somebody relatively new, you don't know what they bring to the table, so you do tend to struggle. I am a little worried. Muhammad Siraj is back in the Indian team, and या I या know या he's a very dangerous player. Very वेरी dangerous. So he's one of the guys I'm gonna watch out for tomorrow. The second guy I'm gonna watch out for is Tilak Verma. He's not या talked about too much, but even in the Asia Cup final, जब हमने इंडिया के अभिषेक को भी आउट कर दिया था, शुभमन गिल भी आउट हो गया था, बिल्कुल Tilak Verma was the या gent that carried टू his प्लेयर innings really या well. I really liked his temperament. This guy can score a lot of runs without taking any risky shots, and that is such a dangerous skill set because A, एग्जैक्टली he's limiting his risk of even getting out, and then B, without taking any risk, he's scoring so many runs. So एग्जैक्टली Pakistan, India's team has a strong depth. अगर हमने अभिषेक को भी डक पे भी आउट कर दिया कल, बेशक उसके वन डाउन जो बैट्समैन क्या नाम है, सूर्य कुमार को भी हमने सूर्या जल्दी कुमार। आउट कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है कि हम खुश हो जाए। नहीं, जब एग्जैक्टली तक इनके सारे 10 पे 11 आउट नहीं होते ना, इनकी टीम में जस्ट लाइक अस डेप्थ है। अक्षर बिल्कुल पटेल की बैटिंग करता है, इनकी बहुत बिल्कुल डीप बिल्कुल। जाती है, पांड्या भी आता है। तो पांड्या है, अक्षर पटेल है, इवन मैं आपको बताऊं एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने अभी डिस्कस नहीं की, और वो पाकिस्तान के लिए है कि वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है अभी। या पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, इट्स एन अलार्मिंग। देखिए, अगर आप उस्मान खान को खिलाएंगे जिसने आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ किया ही नहीं है, हम्म। लाजमी बात है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। शोएब अख्तर कहता है एवरेज बंदों को लाओगे कि एवरेज रिजल्ट्स आनी है भाई। एग्जैक्टली। अगर आप बिलो एवरेज बंदे को ला रहे हो, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस बाय द वे, मैं देखिए अपनी टीम की बुराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर आप एक ऑब्वियसली। बिलो एवरेज प्लेयर को ला रहे हो तो आपको बिलो एवरेज रिजल्ट्स ही मिलने हैं। दिस इज अ नॉर्मल कोरिलेशन। आई एम नॉट इवन गुड एट मैथ, बट दिस इज अ वेरी ऑब्वियस कोरिलेशन। उस्मान तारिक ने आज तक, सॉरी उस्मान खान, सॉरी माय अपॉलॉजीज, उस्मान उस्मान खान या खान ने आज तक क्या किया बैटिंग में, आप मुझे खुद बताएं। नथिंग। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो यूएई टीम का एक प्लेयर था, उसने बोला कि मुझे पाकिस्तान, आई डोंट नो हाउ ही गॉट इनटू आवर टीम, उसने पीएसएल या में कोई डेड पिचेस पे कोई रन्स कर दिए, उसको ले आए। इतनी बार उसको टेस्ट किया, उसने अभी तक कुछ नहीं किया, नहीं किया, और नहीं किया। उसको फिर भी 2 चांस वर्ल्ड कप में मिल गए हैं। तो मिल गया। अगर उसको आप कल खिलाओगे तो यही लाजमी बात है, आई डोंट सी हिम डूइंग वेल एट ऑल। आई होप आई एम एग्जैक्टली। रॉन्ग, मुझे तो नहीं लगता उसको खिलाएंगे कल, सी, लेकिन यू इसमें कैन प्ले इसमें हिम। इसमें माहिर होता क्या है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर होता है, बेसिकली उनका जो पर्पस होता है मिडिल ऑर्डर का, वो पर्पस ये होता है कि आपका जो टॉप ऑर्डर होता है वो कहीं ना कहीं आपको 60 70 80 तक लेके जाता है, यू कैन से 100 रन्स, राइट। लेकिन लेट सपोज कि अगर वो कोलैप्स करते हैं टॉप ऑर्डर, राइट, तो उसके बाद आता है आपका मिडिल ऑर्डर। वो मिडिल ऑर्डर का जो काम होता है वो ये काम होता है कि वो आपके रन्स को और आपके ओवर्स को, बॉलिंग को मेंटेन रखें, राइट। इट डजेंट मीन कि आप टॉप ऑर्डर अगर आपका फेल होता है तो आपका मिडिल ऑर्डर भी फेल हो जाए, राइट। अब हम बात करते हैं उस्मान खान की, तो उस्मान खान का जो प्रॉब्लम है, वो विकेट कीपर है, राइट, ही इज नॉट डूइंग द बॉलिंग, राइट, लेकिन ही इज डूइंग द बैटिंग, राइट। या लेकिन अगर वो बैटिंग में ही कुछ नहीं कर रहा तो आई डोंट थिंक कि उसकी जगह होनी चाहिए टीम में। और अगर टीम जब बनती है, जब टीम सिलेक्शन होती है, पूरी सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन बोर्ड होता है जिसमें आपके कोचेस हैं, आपके कैप्टन हैं, आपका पूरा बोर्ड एक बैठता है जिसमें डिसाइड होता है। मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि वो बोर्ड में ऐसी कौन सी चीज थी जो इसके अंदर नजर आई और उन्होंने इसको वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट किया। और अगर कर भी लिया तो एटलीस्ट आप जो डिजर्विंग प्लेयर है, जिसको आपने बाहर बिठा के रखा हुआ है, जो ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो दे के आया है, आप उसको खिलाओ। आप उस बंदे को खिला रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस जीरो चल रही है, राइट। और आप जो डिजर्विंग बंदा है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है, आपने उसको बाहर बिठाया हुआ है।
तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, दूसरी चीज के जो क्वेश्चन मार्क है उस्मान खान पे, वो यही है कि ये जो टीम पूरी बनती है, इन जो पूरी टीम के अंदर जितने भी प्लेयर्स होते हैं, ये सारे प्लेयर्स की एक परफॉर्मेंस होती है, जिस परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो नेशनल टीम में सेलेक्ट होते हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब परफॉर्मेंस आपकी जीरो है, परफॉर्मेंस आपकी है नहीं, राइट, आप ऑलरेडी वर्ल्ड कप के 2 मैचेस खेल चुके हो, राइट, 0 रन बाय द वे, 0। आपके कोई रन्स नहीं है, कोई आपकी उसके अंदर आपका पार्ट नहीं है टीम के अंदर। तो मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा कि आप स्टिल इतने बड़े इवेंट के अंदर आप उसको चांस पे चांस, चांस पे चांस किस वजह से दे रहे हैं, उसका क्या रीजन है? वो तो पता है हमको क्या रीजन है, वो पाकिस्तान में। रीजन वो रीजन तो भाई फिर वही है ना, फिर हम तो बोल सकते हैं ना फिर कि ये पर्ची है, क्योंकि बिल्कुल हम कह भी सकते हैं। क्रिकेट देखते हैं, इतना देख देख के तो हमें भी इतना अंदाजा हो गया है कि अगर कोई इस तरीके से टीम के अंदर खेल रहा है जो विदाउट एनी परफॉर्मेंस जीरो, और उसके बाद भी अगर टीम में वो आ रहा है, दैट मीन्स के कोई ना कोई तो ताल्लुकात है, कोई ना कोई तो अंडर द टेबल काम चल रहा है ना, जिसकी देखिए, वजह से वो बंदा टीम में है। अक्सर ऐसे मैंने देखा है, मैं क्रिकेट खुद भी खेलता हूँ, ऐसे बैट्समैन होते हैं जो कमजोर बॉलर को इतने छक्के लगाएंगे कि आपको एक इल्यूजन आ जाएगा कि ये बहुत अच्छा बैट्समैन है। लेकिन एग्जैक्टली, आप एक बार उसके खिलाफ चैलेंजिंग बॉलर लाओगे तो वो आपको फिर नॉविस लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल बहुत ऐसे ही प्लेयर है, होते हैं बिल्कुल जो ऐसे ही है, कमजोर ऑपोजिशन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, और जब सही टीम आती है तो खेल नहीं सकते। और बिल्कुल ऐसे भी प्लेयर होते हैं जो कमजोर टीमों के खिलाफ अच्छा नहीं खेलते, लेकिन उनके सामने अच्छा एक प्रेशर मैचअप आ जाता है ना, तो वो उसमें अच्छा खेलते हैं। मैंने फकर जमान में बहुत देखा है। आप उसको देखेंगे कभी कभार वो कमजोर टीमों के खिलाफ जल्दी बिल्कुल जल्दी सॉफ्ट बिल्कुल डिसमिसल पे आउट हो जाएगा, आउट हो लेकिन जाता है, जब आएगा बड़ा मैच, न्यूजीलैंड के खिलाफ तो 400 रन परफॉर्मेंस जितने देता है। बनाने हैं वो बना के दे देगा। इंडिया के बिल्कुल खिलाफ डेब्यू कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में, सेकंड बिल्कुल मैच था, 100 बना देगा। बिल्कुल एंड ऑफ द डे वी नीड गाइस, जब वक्त मुश्किल हो तो मुश्किल वक्त में वो परफॉर्म कर पाए। हाँ, अच्छे बिल्कुल वक्त में कोई भी परफॉर्म कर लेगा। आप अगर कमजोर एग्जैक्टली टीम के खिलाफ कर रहे हो, उसमें कोई इतनी, इट्स नॉट अ कोई बिग इतना बड़ा डील। तीर नहीं है ना, लेकिन आप आपकी परफॉर्मेंस जो है, आप जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो बड़े प्लेयर्स बनते ही तब हैं जब आप बड़े मैचेस जीतते हैं, जब आप बड़े मसला ये है मैचेस में शेन परफॉर्म भाई, करते हैं। मसला ये है कि मैंने उस्मान खान को इंटरनेशनल लेवल पे कमजोर टीम के खिलाफ में नहीं देखा परफॉर्म करने, ये बिल्कुल बात ऐसे ही है, है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल वेरी ट्रू। क्योंकि अभी जो लास्ट 2 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के, तो पहला मैच जो पाकिस्तान का हुआ था नेदरलैंड से, तो पहला नेदरलैंड से हुआ है, सही है? और दूसरा मैच जो पाकिस्तान का हुआ है, दोनों मैचेस में कौन सी बड़ी टीम थी पाकिस्तान की? वैसे अगर देखा जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि नेदरलैंड की टीम बिल्कुल अच्छी नहीं है, नेदरलैंड की टीम आई थिंक डिजर्विंग टीम है, वन ऑफ द डिजर्विंग टीम है, जो कि वर्ल्ड कप में जिन्होंने परफॉर्म किया है, जस्ट लाइक यूएसए, राइट। हमने इतना बड़ा भी बीच में जो अपसेट देखा है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है, राइट, जो कि जिम्बाब्वे ने मारा है, तो छोटी बड़ी टीम्स तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हम प्लेयर्स के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि इन टीम्स के खिलाफ भी अगर कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा कंसिस्टेंटली, राइट, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं उस्मान खान के लिए। तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि आइदर ये इंडिया के मैच में कोई 100 रन बनाएगा, मतलब ये तो एक सो कॉल्ड वो वाली चीज हो गई कि आप जबरदस्ती किसी को जो है वो कुछ इम्पोज कर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं ऐसा होगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। सबको पता है कि वो फेल हो रहा है, उसकी जीरो परफॉर्मेंस है, और उसकी वो जिस जगह पे है अभी टीम में, राइट, ये बहुत बड़ा इवेंट है। जब इतने बड़े इवेंट होते हैं तो आपकी टीम भी फिर उस इवेंट के हिसाब से ही आप सेलेक्ट करते हैं, राइट। और जब सिलेक्शन मैं एक और चीज बताता हूँ, ये जितने भी बोर्ड्स होते हैं, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी बोर्ड हो या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, ये इनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, राइट। आप अगर किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो किसी वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं, और किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो किसी वजह से ड्रॉप कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। यहाँ पे तो कोई रीजन ही नहीं है ना भाई, यहाँ पे तो कोई रीजन, मुझे आप एक रीजन बता दो इसको सेलेक्ट करने की, जिसने कोई एक प्रीति रीजन। की उसने बहुत पैसे दिए होंगे, वही रीजन दे सकता हूँ, बिल्कुल और ऐसे मेरे ही है, पास नहीं है।
बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, आप मैच नहीं खेल रहे, आप बेकार टीम्स के सामने आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, तो अच्छी टीम्स के सामने आप हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये 100 या 50 रन बनाएगा, वो भी मिडिल देखिए, एक ऑर्डर और में मैं आके। बात कहूँ, आउट होने का तरीका भी होता है। देखिए, अगर आप बिल्कुल, 0 पे आउट हो भी रहे हैं ना, लेकिन आपने एक अच्छी इंटेंट की शॉट खेली है या आप बिल्कुल बाउंड्री की रोप पे हो रहे हैं, तो बंदा कह सकता है दिन इसका नहीं था। जैसे वो बैड लक है। हाँ, साइम अयूब का भी जब फॉर्म नहीं होता था ना, तो कम बिल्कुल, से कम वो आउट इज्जत से हो रहा था। ये नहीं था कि बिल्कुल, मतलब ही वाज लुकिंग रबिश और फूलिश। कोई रफ शॉट पे नहीं हो रहा था। हाँ, उस्मान खान बोल्ड भी हो रहा है। उसकी जो एक होता है ना, जब बॉलर आपके खिलाफ रन अप कर रहा होता है, हाउ यू शेप बिल्कुल, अप, हाउ यू मूव, हाउ यू वॉच द बॉल। बिल्कुल, उस्मान पूरी खान बॉडी लैंग्वेज होती है। body हम्म, language. Usman Khan looks like a deer in front of headlights. It looks like he's बिल्कुल not ऐसी है, ready for this stage. बिल्कुल। Like, सो उस्मान खान के टॉपिक में यही मैं एंड करूंगा। मेरे ओपिनियन में उसकी कल सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मेरा बने तो मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, कवाशी यार, नाफे को मैं लाने के लिए मैं तो बोलूंगा कि उसकी सिलेक्शन सिर्फ कल के मैच में नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ही इज डिजर्विंग टू प्ले दिस वर्ल्ड कप, नहीं, बिल्कुल सीरियसली, क्योंकि 100%। उसकी बनती नहीं है जगह, उसकी बिल्कुल जगह नहीं बनती। आई थिंक कि उससे बेटर था कि अगर ख्वाजा नाफे को लेते, तो एटलीस्ट अगर वो रन्स नहीं भी करता, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस गेन कर लेता, राइट। लेकिन वो एटलीस्ट उस एक्सपीरियंस का फिर रिजल्ट बाद के मैचेस में देता भी, राइट। आपको सीखते हो ना, हर मैच से सीखते हो। आप किसी की मैच में आप, अगर आप, आपकी कोई बैड लक है, अगर आप जिस तरीके से भी आप आउट हो रहे हो, नहीं हो रही परफॉर्मेंस, कोई बात नहीं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना। आप नेक्स्ट मैच में आते हो, आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे तो कोशिश नजर ही नहीं आ रही ना। कोशिश भी तो नजर आए एटलीस्ट। लेकिन आप जब पिच पे आ रहे हो, आप 2 बॉलें खेल रहे हो, आप 5 बॉलें खेल रहे हो, आप उससे ज्यादा पिच पे टिक ही नहीं पा रहे, तो ये तो कोई एक अच्छे प्लेयर की निशानी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इससे अच्छे अच्छे लड़के अंडर 19 के अंदर हैं हमारे पास, और राइट। हमारे जो अंडर 19 के लड़के इस बार थे, इट्स probably the best we've seen in a बेस्ट, very long बेस्ट, time. बेस्टेस्ट बैटिंग वन। वाइज, या, बॉलिंग तो हमारी हमेशा अच्छी होती है अंडर 19 में। शाहीन भी मिला है, आमिर भी बिल्कुल, मिला है, काफी बिल्कुल, प्लेयर्स आए हैं, लेकिन इस बार हमारी जो बैटिंग थी ना, क्या बैटिंग थी बैटिंग भी, क्या फील्डिंग कितनी अच्छी थी लड़कों की। शायद बहुत हमारे इस जबरदस्त, टीम की फील्डिंग से ज्यादा अच्छी हो सकती है, इवन बहुत दो दिस बहुत टीम की भी ज्यादा। बहुत अच्छी फील्डिंग जा रही है इस वाली बिल्कुल पाकिस्तान ऐसी है, की। बिल्कुल ऐसी है। बस लास्ट लास्ट में शादाब ने कुछ मिस फील्डिंग की थी, आई गेस। मैंने चेक किया था, एक कैच ड्रॉप किया था। लेकिन ठीक है, वो हम बैड लक कह सकते हैं, क्योंकि उसने बॉलिंग में ठीक है जान मारी है, इवन बैटिंग में भी उसने थोड़ी बहुत जान मारी। लेकिन आई आई थिंक इंडिया के अगेंस्ट में ना, ये क्योंकि ये मैच जो है, ये सिर्फ मैच नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है इज समथिंग लाइक, इंडिया वाले कहते हैं कि इंडिया ये मैच जीत जाए, बाकी पूरा वर्ल्ड कप हार जाए। और पाकिस्तान के लोग दोनों ये कहते कहते हैं, हैं, हम भी है ना, कहते और हैं, वो भी पाकिस्तान के कहते लोग भी सेम यही चीज कहते हैं। तो इट्स जस्ट नॉट अ मैच, ये मैच से थोड़ा सा हैं। बढ़ के होता टू है। बी फेयर, इंडिया की सोच हमसे थोड़ी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग वो एक T20 वर्ल्ड कप जीत भी गए हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, जो वो 23 वाला कॉन्फिडेंट है। वर्ल्ड कप हारे थे ना एट होम, उनमें ये जरूर सोच होगी कि नहीं, इस बार घर में नहीं हारना, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जो उनका क्रिप्टोनाइट है वो भी कमजोर है। बिल्कुल और ऐसी। उनका एक कदम तो निकल भी गया वर्ल्ड कप से, देर ऑलरेडी हम्म, 1 फुट इन द एयरपोर्ट, सॉरी टू से बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन फैंस। बिल्कुल, So India will probably be looking at other teams, and they will be like, you know what, we can win this time because the competition is less. South Africa is pretty good, but we know how South Africa does when they reach या, the later stages. They love to, they also love to choke, unfortunately. Historically speaking, nothing against them, very strong team, but India probably fancy their chances winning this World Cup with ease, to be very honest. बिल्कुल, बिल्कुल, But then again, Pakistan is playing all its matches in Sri Lanka, so we just never know. एग्जैक्टली। Anyways, before we move on, I want to say for all our new viewers tuning in, welcome to Dream Media Radio. I am your host, Mahar Iqbal. Joining me is my good friend, Mr. Zain, and we are discussing tomorrow's big match, Pakistan versus India. न्यू पर्सन, हमने इस बंदे की बात ही नहीं की, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं की। नॉर्मली इसकी बात पहले करनी चाहिए। मिस्टर बाबर आजम, व्हाट डू यू थिंक ऑफ बाबर आजम? वेरी बिग मैच। एक बात मैं आपको बताऊं जैन भाई, या, अगर कल बाबर आजम ने कुछ कर दिया ना, सेंचुरी मार दी, 50 मार दी, तो ही जो शुड, ही शुड। 3 सालों से 4 सालों से जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ ऊपर करके कहता हूँ, मैं बिल्कुल उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। उसने कल 50 मार दी ना, मैच विनिंग 50 मार दी, मैच जिता दिया, तो सब चुप हो जाएंगे, बिल्कुल ऑनेस्टली। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। करना भी चाहिए, करना चाहिए, ये बहुत बहुत, आप कह सकते हो कि वो कहते हैं ना कि एक वंस इन अ लाइफ टाइम, राइट। तो ये उसको बना सकता है, क्योंकि जितनी उसकी पास में परफॉर्मेंस थी, 2 साल
बिल्कुल ही जीरो परफॉर्मेंस पे वो रहा है बाबर आजम, राइट? इनकंसिस्टेंट तो है, बाबर आजम का क्या मसला है, वो बैटिंग कर रहा होगा ना, तो जब वो 25-30 पे होगा, लग रहा होगा हर बॉल मिडल हो रही है, ही इज वाचिंग इट वेल, एवरीथिंग इज गोइंग टू प्लान, एंड आउट ऑफ बिल्कुल नोवेयर लैप्स ऑफ जजमेंट या तो बोल्ड हो जाता है। उसके डिसमिसल्स भी आप देखें ना, दे वेरी सिमिलर टाइम एंड टाइम अगेन। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल स्पिनर बिल्कुल आता है तो उसको पैड पकड़ लेगा, उसका उसकी नेक लग जाती है, बोल्ड हो जाता है। सो देयर हैज बीन वीकनेस इन हिज गेम, बट एट द सेम बिल्कुल टाइम बिल्कुल जब उसका दिन होता है तो उसको कोई भी बंदा आउट नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। कमिंस की बिल्कुल तरह फास्ट बॉलर को कवर ड्राइव मारता है, उसने काफी बिल्कुल काफी अच्छी टीमों को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। और देखें, बाबर आजम is still one of the best textbook batsmen in cricket. Yes, we know his strike rate has been a problem, but we also know he is trying and trying. He is trying to change his game, but you cannot, if you are known to be a guy that finds his gaps, it doesn't necessarily mean कि अब आपने जाके मिसबा कहता है ना, मुझे कह रहे हो स्ट्राइक रेट बढ़ा, उसका ये मतलब तो नहीं कि रॉकेट लॉन्चर मार दूं। तो एग्जैक्टली बाबर आजम से भी यही मैसेज होना चाहिए कि भाई आप बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर ना मारो, अगर आप बिल्कुल डॉट्स कर रहे हो तो उस सिंगल को आप डबल कन्वर्ट कर दो, अगर बिल्कुल डबल है तो उसको ट्रिपल लेकिन कन्वर्ट कर दो। माहिर, मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो उस्मान खान हो, कोई भी प्लेयर हो, आई थिंक अगर कोई बड़ा प्लेयर है ना या छोटा प्लेयर है, हम्म। प्लेयर का मतलब ये होता है कि आप ये नहीं देखते कि मैच बड़ा है या छोटा, आपकी परफॉर्मेंस होती है, राइट? दूसरी चीज कि परफॉर्मेंस जो है वो अगर आप बड़े मैचेस में नहीं दे रहे, तो आई थिंक आप बड़े प्लेयर नहीं Absolutely, no, this is हो। 100% सॉरी। correct. Every big player has shown time and time again that when there is a big match, they will put on their socks and give a performance. अगर हम ग्लेन मैक्सवेल की भी बात करें, आप उसको देखेंगे काफी अरसे से, ही विल नॉट परफॉर्म इन मैनी मैचेस, बट जब वो बड़ा मैच आता है, जब टीम को सख्त जरूरत होती है, उसने अफगानिस्तान के खिलाफ भी 200 रन मारे हुए हैं। सो यस, यू आर करेक्ट। ट्रेविस हेड का भी एग्जांपल है, काफी बार आप देखेंगे आउट ऑफ फॉर्म होगा, उसके रन नहीं बन रहे होंगे, एक बड़ा मैच आ जाएगा, एशेज हो जाए, वर्ल्ड कप फाइनल हो जाए, वो गपशप लगा के सेंचुरी मार देगा। सो यू आर बिल्कुल राइट, इन ऑर्डर टू बी अ वेरी बिग प्लेयर कंसिडर्ड इन दैट कैटेगरी, you must be performing in those matches as well that are considered in the category of big matches. So you are correct. And in our team, we do have some of those guys. To be honest, Shaheen Afridi, as bad as he has been in his performance, he has also shown us कि बड़े matches में वो भी perform कर सकता है. बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हम सबको पता है ये बात कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में दोनों टीम्स में प्रेशर होता है, वो बिल्डअप होता है, वो इट्स जस्ट अ नेचुरल थिंग, राइट? तो बस मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि वही प्रेशर जो भी टीम एब्जॉर्ब करेगी, जो प्लेयर एब्जॉर्ब करेगा, वो परफॉर्मेंस देगा, वो टीम जीतेगी। तो बेस्ट ऑफ लक, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल अपने नेबर्स को, इंडिया को देना चाहिए। और नो डाउट कि उनकी टीम भी, मेरे हिसाब से इंडिया की टीम भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे रही जो उनको देनी चाहिए, ये आपको एक बात बताऊं, राइट? जो अभी मैंने हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं। नमीबिया का मैच मैंने थोड़ा सा देखा था। सो 7 ओवर्स में इनके 100 रन बन गए थे, टॉप ऑर्डर ने इनको एक बिल्कुल अस्टोनिशिंग ग्रेट स्टार्ट दी है, लेकिन बिल्कुल 13 ओवर्स में वो फिर दो मतलब 100 ही रन बना पाए। इनका अगर 7 ओवर में 100 बिल्कुल बनना है तो ये 240 बना सकते थे, 230 बना सकते थे। बिल्कुल बना लेकिन सकते थे। जब नमीबिया के बिल्कुल। भी अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर आया था तो वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। अच्छा, एक एश्विन, आप एश्विन की बात कर रहे थे, मैं कुछ भूल गया था ऐड ऑन करने। एश्विन ने अपने हम्म। लड़कों को बोला है कि उस्मान खान जब पॉज करेगा ना, आप भी ना अंपायर से कहो मुझे खेलनी नहीं है बॉल, आप साइड पे कहो कि मैं साइड पे और मुझे नहीं खेलनी बॉल। तो रियली? इनको भी चेस खेलने का बड़ा शौक है। तो आप अगर पाकिस्तान के मैनेजमेंट में होंगे, आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे हम्म। बॉलर को? बैट्समैन पॉज हो रहा है, आप क्या कहेंगे उसको? देखिए, बैट्समैन अगर पॉज हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बोलता हूं, आपके जो भी एक्शन है, कोई भी XYZ, चाहे वो उस्मान तारिक का एक्शन है या फिर आप साइम अयूब का ले लें या अबरार का ले लें, ऑब्वियसली तीनों के अलग अलग एक्शन हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप के जो भी एक्शंस हैं, आपको क्लियर चिट दी है आईसीसी ने, राइट? आप अपने घर से एक्शन नहीं लेके आए, या आप अपने घर से कोई बॉल नहीं लेके आ रहे, आपको आईसीसी प्रोवाइड कर रहा है, आईसीसी चेक कर रहा है, आईसीसी आपको क्लियरेंस दे रहा है, उसके बाद आप इतना बड़ा इवेंट खेल रहे हैं और ऑलरेडी पास में 2 मैचेस खेल चुके हैं, राइट? उसके बाद अगर आप
बॉलिंग कराते हैं आप अपने एक्शन से, और उसके बाद अगर सामने जो बैट्समैन है वो अगर पॉज करता है, डजेंट मैटर, वो तो अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ कि बैट्समैन अगर पॉज करेगा तो बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम है, बॉलर के लिए नहीं है। क्योंकि वंस अगर बैट्समैन स्टक होता है, राइट, तो आई डोंट थिंक कि वो बॉल इतनी जल्दी जज कर सकता, जिसमें बॉलर को आई थिंक ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं तो उस्मान तारिक को ये कहूंगा कि अगर वो एक्सपेक्ट करे ना आप पॉज करोगे, दो तीन बॉलों पॉज ही ना करो, बस सीधा सीधा स्मूथली बॉल करवाओ। वो वेट ही करोगे ये पॉज हो रहा है, एकदम बॉल ही आ जाएगी। तो माइंड ऑब्वियसली, गेम्स हमने भी खेलनी पड़ेगी बिल्कुल है, उनके साथ। और क्या, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि आप जो बॉलर बनते हो ना, तो आपको यही चीज, वही एक जो आई थिंक वो कोई सेकंड होता है जिसके अंदर बॉलर जो है वो ये सोच लेता है कि मैंने अब कौन सी बॉल करानी है, आइदर इट्स लेग ब्रेक, आइदर इट्स ऑफ ब्रेक, आइदर इट्स फुल टॉस, व्हाटएवर। ठीक है, तो वो जो एक सेकंड है, वही सारा आपका जो विकेट टेकिंग होता है, चौका छक्का भी उसी में पड़ता है। इट जस्ट डिपेंड ऑन द बॉलर, क्या वो कौन सी बॉल कराने वाला है। अब आपका जो एक्शन होता है, बेसिकली जो लोग बोलते हैं ना सो कॉल्ड के एक्शन, 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 वो फास्ट बॉलर, वो स्पिन बॉलर, तो बेसिकली होता क्या है, बहुत सारे एक्शंस आपने देखे होंगे फास्ट बॉलर्स के, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं वसीम अकरम का, अगर हम पास में जाएं, या वकार यूनिस का, इवन, या इवन शोएब अख्तर का, तो उसमें वो जब बॉल कराने वाले होते थे ना, उस वक्त वो अपनी फिंगर्स को मूव करते थे बॉल्स पे, राइट। एक तो बॉल होती है, आप बॉल पकड़ के आ रहे हैं और आप बॉल करा रहे हैं, तो बैट्समैन को साफ पता चल रहा है कि आप कौन सी बॉल डालने वाले हैं उसको, राइट। लेकिन ज्यादातर स्पिनर्स में क्या होता है कि वो उनकी बॉल जज करना बड़ा मुश्किल होता है, हर किसी की बॉल आप जज कर भी नहीं सकते, राइट। जो उस्मान तारिक का जो एक पॉज आता है बीच में, उसमें तो उस्मान तारिक को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, बहुत ज्यादा ही बेनिफिट है। क्योंकि उस सेकंड का पॉज होगा, या मिली सेकंड का पॉज होगा, कुछ मिली सेकंड्स का पॉज होगा, लेकिन उस सेकंड्स के अंदर एटलीस्ट उसको फायदा ये कि वो बैट्समैन को जज कर लेता, उसको पता होता है। आई थिंक कि उसका जो ये की पॉइंट है उसकी विकेट्स का, वो आई गेस कि वो है भी यही, कि जब आप बैट्समैन को जज कर लेते हो कि उसकी क्या पोजीशन है, और वो कौन सा शॉट आइदर लेग पे हिट करने वाला है, ऑफ पे हिट करने वाला है, तो आप फिर उसी तरीके की बॉल कराते हो जिसमें आपको विकेट मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉलर्स जितने भी हैं, उनके एक्शंस कोई भी हो, वंस अगर बैट्समैन को अगर पता चल जाए कि ये कौन सी बॉल करा रहा है, या उसके एक्शन से पता चल जाए कि कौन सी बॉल करा रहा है, तो आई गेस कि फिर वो बॉलर जो है ना वो बहुत पिटता है, उसकी बहुत कुट लगती है उस मैच में। और ये हो चुका है, अगर आप थोड़ा सा पास में जाए इंडिया पाकिस्तान के मैच में, तो शाहीन आफरीदी के साथ हुआ था। इवन ये बाद में रोहित शर्मा ने इस चीज को बाद में अपने ट्विटर अकाउंट पे जो है वो मेंशन भी किया था, बड़ा उन्होंने उसका मजाक भी उड़ाया था। और बिल्कुल उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि आप जितना जितना ज्यादा चालाक बनेंगे, या चालाक आप कह लें, या आप उसको ये कह लें कि आप जितने स्मार्ट बनेंगे, ऑब्वियसली स्मार्टनेस भी जरूरी होती है, चाहे गेम हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो। तो शाहीन आफरीदी की जितनी बॉल्स थी, शाहीन आफरीदी को एक छक्का और तीन चौके कंसिस्टेंटली चार बॉलों पे पड़े थे, रोहित शर्मा ने मारे थे। जब बाद में उससे पूछा गया था, तो उसने यही सेम चीज बताई थी कि वंस अगर आप बॉलर का एक्शन जज कर लें, आपको पता चल जाए बॉलर कौन सी बॉल करवाने वाला है, तो आगे आपको समझ लें कि आपको प्लेट में रख के दे दी उसने बॉल, अब आप मारे। The truth is, in तो international cricket, you just can't be one dimensional. And Shaheen Afridi early on was showing us you would get wickets by bowling full. Like I said, the longer you play, there's a better clue on how to play you as well. देखिए एसोसिएट नेशन बिल्कुल, ज़्यादा खेलती नहीं है. That's why this World Cup, because they've come well prepared and people have a less idea of how to play them, they've been performing better. शाहीन अफरीदी को अब कब बिल्कुल, से बड़े अरसों से हम देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इंडिया की प्लानिंग देखिए. इंडिया टॉप टीम है आखिर में, जो भी राइवलरी है, बिल्कुल, राइवलरी साइड, देयर इज अ रीजन कि वो बिल्कुल, वर्ल्ड कप भी जीतते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू स्टडी देयर अपोनेंट्स. इनको उस्मान तारिक की इस बात का बिल्कुल। टेंशन हो रही है क्योंकि इन्हें इसके खिलाफ कभी खेला ही नहीं है. नहीं खेला, फर्स्ट टाइम तो शाहीन एक्सपीरियंस करेंगे शाहीन अगर अपनी इंडियन वन बैट्समैन। डायमेंशनल बॉलिंग अगर करेगा, सॉरी टू कट यू ऑफ, अगर वो अपनी वन डायमेंशनल बॉलिंग करता रहेगा जो प्रेडिक्टेबल, जो नीदरलैंड्स ने प्रेडिक्ट कर ली थी कि पहले बॉल फुल आ रही हो तो आगे ही आ गया था, उसके मुंह पे ही आगे आके शॉट के लिए,
तो उसको फिर कोई भी अटैक कर बिल्कुल सकता है. He will have to do बिल्कुल something different tomorrow. He will have to. अगर उसको खिलाए, because we don't know, by the way, पाकिस्तान टीम का पता भी नहीं है कल खिला किसको रहे हैं. ये भी हो सकता है कल बिल्कुल नसीम को ऐसे ही है खिलाए, शाहीन को बता दें. आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, बिल्कुल what changes would you have in tomorrow's team considering हमारे first two matches almost same squad था. शायद हमारा एक और बॉलर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसको सलमान मिर्जा, उसको बैठा दिया था इवन दो ही बॉल सलमान बॉल मिर्जा उसने बॉलिंग बिल्कुल अच्छी की, उसको बिल्कुल बैठा दिया. जिसने बॉलिंग अच्छी नहीं की उसको बिल्कुल खिला रहे हैं. So what changes would you ऐसा have, ही है which players would you have in for tomorrow's match? फखर जमान Okay. for sure. Khwaja Nafe Yeah. should be in, right? And नसीम शाह हर दफा आपको उसने परफॉर्मेंस दी है इंडिया के अगेंस्ट में, राइट? Yeah. नसीम शाह एंड सलमान सलमान मिर्जा। तो आप शाहीन को बिठाएंगे? मैं नहीं चाहूंगा, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं शाहीन को बिठाऊंगा। शोएब अख्तर सेट, सॉरी, मोहम्मद आमिर सेट द सेम थिंग कि अगर आप शाहीन को बिठाते हैं, राइट, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम some kind of sports journalist or something in Pakistan, तो आमिर को उन्होंने पूछा कि अगर शाहीन को बिठाते हैं, राइट, तो आप नहीं समझते कि एक एक्सपीरियंस बॉलर को आप टीम से मतलब ड्रॉप कर रहे हैं इतने बड़े मैच में? तो उसने जवाब दिया कि या तो आप फिर एक्सपीरियंस खिला लो या फिर आप एक अच्छा बॉलर खिला लो। और यही सेम जवाब मेरा भी है कि एक्सपीरियंस ठीक है, कहीं ना कहीं काम आ सकता है, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है तो आई डोंट थिंक एक्सपीरियंस तो बॉल कराने के बाद ही आएगा ना। आप जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है सलमान मिर्जा, आपने उसको बाहर बिठा के रखा हुआ है, बाहर बैठ के वो कौन सा एक्सपीरियंस ले रहा है? वो तो वही एक्सपीरियंस ले रहा है जो हम घर पे टीवी देख के एक्सपीरियंस ले रहे हैं, वो भी वही एक्सपीरियंस ले रहा है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी भी प्लेयर को, आइदर वो बैट्समैन है या बॉलर है, अगर आप उसको खिलाओगे नहीं, उसका एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा। और अगर आप किसी ऐसे बॉलर को खिला रहे हो, 144 पे शाहीन ने बॉल्स करवाई है लास्ट मैच में, 142, 143, 144, ठीक है? तो 144 पे आप बॉल कराओ या आप 150 पे बॉल कराओ, अगर आपको उस पे चौके और छक्के पड़ रहे हैं, आप रन उसमें स्टॉप नहीं कर पा रहे, तो आपके 144 पे करवाने का कोई फायदा नहीं है। आपको उससे बेटर ये नहीं है कि कोई स्पिनर जो है वो आके 90-95 पे बॉल करवा दे, राइट, और 2-3 विकेट्स ले जाए। तो इट्स नॉट अबाउट द स्पीड और इट्स नॉट अबाउट द एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये टोटल गेम जो है ये स्मार्टनेस का है, आपकी परफॉर्मेंस About का the है, tactics. और Tactics are important. बिल्कुल आपकी टैक्टिक्स हैं, ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है ओवरऑल, राइट? तो शाहीन आफरीदी ठीक है, एक अच्छा बॉलर है, प्रीमियम बॉलर्स आप सब बोलते हैं, लेकिन आई थिंक कि प्रीमियम बॉलर तो वो है जो परफॉर्मेंस दे रहा है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। Shaheen is क्योंकि inconsistent. That's the truth. बिल्कुल। और जो मैंने चेंजेस बताई हैं जिसके अंदर फखर जमान शुड बी इन द टीम फॉर टुमारोज मैच, और ख्वाजा नाफे, नसीम शाह, Yeah. और सलमान मिर्जा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स बहुत ज्यादा हैं टीम में, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, राइट, तो फास्ट बॉलर आप लास्ट मैच अगर उठाते हैं पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान ने लास्ट मैच खेला है, उस मैच में आप देखें हमारे पास फास्ट बॉलर कौन था? उसमें हमारे पास शाहीन आफरीदी था, शाहीन शाह आफरीदी, और हमारे पास नसीम अशरफ। इसके अलावा हमारे पास कोई बॉलर नहीं था जिसमें नसीम अशरफ से कोई बॉलिंग नहीं करवाई, सिर्फ शाहीन शाह ने उसमें बॉलिंग करवाई है। तो व्हाट डू थिंक यार, मतलब इतने बड़े इवेंट में, इतने बड़े मैचेस में आप अगर दो पेस बॉलर्स अगर आप खिला भी रहे हो, तो एटलीस्ट उनसे बॉलिंग कौन करवाएगा? आप बॉलिंग तो करवाओ उनसे। नसीम अशरफ ने तो कोई बॉल नहीं करवाई है, इवन ही इज नॉट लाइक यू कैन से मीडियम फास्ट बॉलर, बट स्टिल उसने कोई बॉलिंग नहीं करवाई है। फहीम आपने अशरफ का शाहीन ये शाह अफरीदी से, मसला ये है, फ़हीम अशरफ की जो बॉलिंग है वो श्रीलंका में शायद यूटिलाइज, इट्स इजी टू प्ले बिकॉज
दुबई के जो पिचेस थे उसमें आप कटर्स करवा सकते हो, आपको विकेट्स मिलती हैं। बिल्कुल, उसकी पेस थोड़ी कम बिल्कुल, होगी, आई थिंक उसको टारगेट इजीली कर सकते हैं फहीम अशरफ को। कर सकता है। लेकिन वो तो ऐसा नहीं इसीलिए बंदा मैं है कह रहा ना। हूँ कि लेकिन अगर आपके पहले हुँ, फास्ट बॉलर को मार पड़ जाए तो आप ला सकते हो उसको एज अ सब्स्टिट्यूशन, या किसी बिल्कुल, स्पिनर को लग वो जाए। एक ऑप्शनल है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो ऑप्शनल है क्योंकि वो ऑलराउंडर है, राइट? तो हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते सिर्फ बॉलिंग के उससे, क्योंकि ऑब्वियसली पहला मैच ही उसी ने जिता दिया आपको, राइट? वो तो वर्ल्ड कप तो बचा दिया वो आपका हमारा। की प्लेयर बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो इन्होंने तो शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई फास्ट बॉलर खिलाया ही नहीं। तो शाहीन शाह अफरीदी ने जो रन खाए हैं उसमें और जो वो पिटा है उसमें, ठीक ठाक उसको रन पड़े हैं उसमें, राइट? अब अगर आप यही टेक्निक सोचते हुए इंडिया के अगेंस्ट अगर जाते हैं, राइट, तो आपके पास फास्ट बॉलर्स कौन है अगर आप फिर वही उसी उसी चीज को राउंड अप करते हैं? तो आई थिंक इनको फास्ट बॉलर्स में सलमान मिर्जा और नसीम शाह, ये दो तो इनको डेफिनेटली टीम में लेने होंगे क्योंकि आपके पास स्पिनर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और सारे ही फॉर्म में भी हैं, नो डाउट, राइट? तो आप अगर दो फास्ट बॉलर्स, आई थिंक दो की जगह बननी चाहिए टीम में, और शाहीन शाह अफरीदी के अलावा यानी उसको ड्रॉप करना चाहिए इंडिया के मैच में। आई एग्री, अ, सरप्राइजिंगली दूसरी आई तरफ एग्री। एक और क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, और एक और क्वेश्चन पैदा ये होता है कि जो शाहीन शाह अफरीदी है ये बैटिंग भी करता है, राइट? वो तो सर तो हमारी टीम में सब कर लेते हैं यार। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते नहीं, अगर आप बिकॉज एक ही इज बॉलर पे नॉट डिपेंड ही इज कर नॉट रहे अ हैं तो बैट बैट्समैन। नहीं कर सकते, सही बात है। बिल्कुल, आप डिपेंड नहीं कर सकते उसको कि नहीं हम इसको इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि अगर ये बॉलिंग में नहीं भी चला कोई बात नहीं, लास्ट ओवर्स में अगर इसकी बैटिंग आती है तो ये एटलीस्ट कुछ ना कुछ परफॉर्म कर लेगा, 6-7 रन 10 ये रन जो होती है ना, बना ये सकता है। डिफीटेड सोच होती है ना। अगर टीम ऐसे सोच रही है उसका बिल्कुल, ये मतलब है कि हमारे बैट्समैन नहीं चलेंगे तो इंशाल्लाह शाहीन आके बैटिंग कर लेगा। ये फिर डिफीटेड सोच शाहीन होती आके है। बैटिंग कर लेगा। तो हम्म। मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, अगर शाहीन बैटिंग कर लेगा तो फिर तो नसीम शाह भी बैटिंग कर लेगा, आई गेस। उसने तो 2 छक्के भी व्हाट डू लगाए यू हैं से? अफगानिस्तान के खिलाफ, वो तो मैच कोई भूलता नहीं है। तो आई गेस के इनको जो है ना फास्ट बॉलिंग के अंदर सलमान मिर्जा और नसीम शाह, इन दोनों को लाना चाहिए टीम में, खासतौर पे इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि नसीम शाह बहुत जबरदस्त बॉलिंग करता है। इंडियंस बैट्समैन जो है वो उनको परेशान भी करता है, रन भी रोकता है T20 में खास तौर पे, और विकेट्स भी निकालता है। शाहीन शाह अफरीदी आई डोंट थिंक सो, वो अभी उसकी वो फॉर्म नहीं है, आई डोंट थिंक कि वो वर्ल्ड कप के हिसाब से जो है ना वो फिट है, और वर्ल्ड कप के हिसाब से वो बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, वो 144 पे बॉल करा रहा है, लेकिन अगर वो 144 पे बॉल करा के अगर एक ओवर में 15 रन 12 रन अगर दे रहा है तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। मतलब आप 4 ओवर करा रहे हो पूरे मैच में, और 4 ओवर में आप आके एंड ऑफ द डे आप 60 रन 55 रन दे रहे हो, 55-60 रन दे रहे हो, तो वो तो कोई फायदा ही नहीं है ना फिर आपकी बॉलिंग का। और फिर आप बोल रहे हो कि प्रीमियम बॉलर्स, तो प्रीमियम बॉलर तो ऐसा होता है कि वो हार्डली 20-30 रन देगा मैक्सिमम। मैक्सिमम वो भी मैं वो बता रहा हूँ कि उसमें अगर उसको छक्के चौके पड़ेगा, वरना 20 रन मैक्स है। ये होता है प्रीमियम बॉलर, जिसमें वो अराउंड कुछ नहीं तो 3 से 4 विकेट आराम से ले लेगा, राइट? तो आई थिंक प्रीमियम बॉलर जो है ना वो इस दफा कल के मैच में तो उस्मान तारिक बनने वाला है, और अच्छा, आपको लगता है गारंटी प्रीमियम गारंटी तो बैट्समैन नहीं कौन करनी बनता चाहिए? आप कन्विंस्ड है कि उस्मान तारिक प्रेशर है? हैंडल मैं करेगा? कन्विंस्ड हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वो करेगा, बिल्कुल वो करेगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है हर मैच में, तो आई थिंक वो कितना बड़ा मैच है कितना छोटा मैच है, आई थिंक वो ये देख के नहीं खेलता। इवन उसके काफी इंटरव्यूज भी मैंने देखे हैं, और ऐसा लगता भी है उसके मैचेस देख के, उसकी बॉलिंग देखते, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, कि वो मैच नहीं देखता कि किसके साथ है या कितना बड़ा या कितना छोटा मैच है, वो ये देखता है कि मैं मैच खेल रहा हूँ इस वक्त और मैं बॉलिंग करा रहा हूँ। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव चीज होती है एक प्लेयर के लिए कि वो एक इस क्रिकेट के मैं बोलूँ मैं क्रिकेट खेलने आया हूँ और मैं अपनी 100% परफॉर्मेंस दूं। अगर मैं ये सोच लूं कि मैं इंडिया के खिलाफ खेल रहा हूँ तो वो तो प्रेशर बिल्डअप होने वाली बात है कि मेरे ऊपर मजीद प्रेशर बिल्डअप होगा। हो सकता है मैं कहीं कहीं ना कहीं आगे लूज बॉल कराऊं और रन भी खाऊं, और हो सकता है कि उसमें मुझे विकेट्स भी ना मिले। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव गैस्चर होता है किसी भी स्पोर्ट्समैन की तरफ से, कि वो एक बड़ा कंफर्टेबल रखता है अपने आप को, और वो ये नहीं सोचता कि बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं छोटे प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो सिर्फ अपना मैच खेलता है। ठीक है, आपसे मैं ये सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान टॉस जीत जाए, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, एंड या व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू इफ वी विन द टॉस?
I think Pakistan should go for the bowling, well, for the batting, Mhm. ठीक है. And if we do for bat the first, batting first. if we do bat, what Mhm. score is a good score against India in Sri Lankan batting conditions? I think should be somewhere at least should be somewhere like 180 to 200. That's what I think. Seems like हमने ये क्योंकि इस पिच पे मैचेस हमने देखे हैं, क्योंकि जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के मैच से पहले भी इसमें मैच हुआ है, और इवन जब पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज हुई थी उस वक्त भी ये इस पिच पे जब मैचेस हुए थे, तो इन T20 आई थिंक अगेंस्ट इंडिया आई थिंक ये स्कोर इस पिच के ऊपर बन सकता है और पाकिस्तान को बनाना चाहिए 180 टू 200। ये स्कोर होना चाहिए Yeah. ताकि जब आप डिफेंड करने के लिए जाएं तो हमें देखने में भी मजा आए मैच, और इंडिया को भी चेस करने में थोड़े से ऑब्वियसली स्ट्रगल करना पड़े इस मैच में। और ये स्कोर आई गेस के ये एक डिफेंडेबल स्कोर भी है T20 में और इस ग्राउंड के अंदर। या, पाकिस्तान को फायदा ये होगा कि अगर वो पहले बैटिंग करता है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत फायदा होने वाला है सेकंड इनिंग में। Yes, absolutely. तो यही सेम चीज मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो ऑब्वियसली इंडियन स्पिनर्स को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है सेकंड इनिंग में। ऑनेस्टली मैं अभी ये कहूंगा कि अगर देखा जाए ना तो ये मैच है 55 फॉर पाकिस्तान 45 फॉर इंडिया, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस का एडवांटेज है. बिल्कुल लेकिन एक बार टॉस बिल्कुल हो जाएगा ना, जो टीम टॉस जीतेगी उसको एक एक्स्ट्रा 10% बिल्कुल लेवरेज मिल सकती है कल. तो अगर इंडिया जीत जाएगा टॉस तो उनको 10% एक्स्ट्रा चांस मिलेगा हमारे खिलाफ. हम जीतेंगे तो बिल्कुल हमको भी मिल बिल्कुल सकता ऐसे है. ही है। एंड आई ऑल्सो अग्री, इफ वी डू बैट बिल्कुल फर्स्ट टुमारो 185 प्लस तो बनाना है, सॉरी, हर सूरत में बिल्कुल बनाना है. बिल्कुल 170 भी बिल्कुल बना लेना बिल्कुल। तो ये अपने पावर प्ले में ऐसी टीम है, ये अपने पावर प्ले में बहुत रन बना लेगी. सो 185 हैज टू बी डन. क्योंकि या क्योंकि माहिर इसमें इसमें T20 में जो मैच होता है बेसिकली जो आपके फर्स्ट ओवर्स होते हैं पावर प्ले के, तो आपको एक चांस मिल रहा होता है जिसके अंदर आप स्कोर करते हैं, राइट? वही मेन स्कोर होता है जो आपको एंड तक जो है वो फिर थोड़े थोड़े रन्स हो के, और फिर लास्ट में जब आप अटैक स्टार्ट करते हैं, तो जब अटैकिंग रन्स बनते हैं आपके लास्ट के 3-4 ओवर्स में, तो वो उसके अंदर कंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका एक बहुत अच्छा तगड़ा स्कोर बन जाता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में कि उन्होंने अपना पावर प्ले का तो यूज ही नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया ने कोई यूज ही नहीं किया, उन्होंने उनकी सारी विकेट्स उसके अंदर लूज की उन्होंने, तो उनकी मजबूरी थी कि उनको अपनी विकेट सेव करनी थी, आप जिसकी देखिए वजह ना, से उनका रन रेट सारा रुक गया था। जिम्बाब्वे के मैच में जो जिम्बाब्वे की फील्डिंग थी, दे वर फील्डिंग लाइक अ टॉप लेवल साइड. बेशक जो बॉल इम्पॉसिबल भी थी ना, चौके के लिए जा भी रही थी, फील्डर कह रहा था मैं फिर भी जमीन पे गिरूंगा, अपनी बॉडी डालूंगा, बेशक चौका एग्जैक्टली हो ही जाए. चार लगा बॉडी रहे थे वो, लैंग्वेज अच्छी थी. बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपना पूरा एफर्ट दे रहे थे, वो 100% सब नजर आ रहा था कि हर बॉल के ऊपर उन्होंने जान लगाई हुई थी। यही जान जो है वो इंडिया को भी लगानी है और पाकिस्तान को भी लगानी है। और आप इसके इन मैच में खास तौर पे आप ये जो मिस फील्डिंग है, आपके ड्रॉप कैचेस हैं, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, ये आप इसमें बेयर नहीं कर सकते। ना इंडिया कर सकता है ना पाकिस्तान कर द सकता है, ट्रूथ क्योंकि इज, जिस टीम ने ये मिस फील्डिंग की। जी नहीं आप, जी 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 बोले, कैरी ऑन। तो द ट्रूथ इज, हाँ, तो जिस टीम ने भी अगर ये मिस फील्डिंग की या ये कैचेस ड्रॉप किए, तो आई थिंक बस वो ये चांस देने वाली बात है ओपोनेंट टीम को। मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपने मिस फील्डिंग का तो चांस लेना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नो ड्रॉप कैचेस, नो मिस फील्डिंग, नथिंग। हाँ, कैरी ऑन। सो आई थिंक ओवरऑल दिस वर्ल्ड कप हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी भी रही है, लेकिन देयर हैज़ बिन ग्लिम्पसेस ऑफ ऑर्डिनरी फील्डिंग. शदाब का आपने कैच बोला है, उस्मान बिल्कुल ने भी, बिल्कुल क्या कहते हैं, मिर्ज़ा साहब ने, सलमान मिर्ज़ा ने भी पहले बिल्कुल मैच में काफ़ी बिल्कुल। पूर फील्डिंग की थी. तो हम्म, इंडिया के खिलाफ बिल्कुल ऐसे प्रेशर मैच में देखिए, एज अ क्रिकेटर मैं क्रिकेट काफ़ी खेलता हूँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की है. बैड फील्डिंग इज़ कंटेजियस. अगर आपकी टीम में एक बंदा कैच ड्रॉप कर रहा है ना, तो ये पूरी टीम को फिर लगता है. आप एज अ टीम थोड़ा सा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, आपसे फिर हो सकता है, दूसरे बंदे से हो सकता है. लेकिन अगर आपका एक बिल्कुल प्लेयर अर्ली ऑन एक बहुत अच्छी डाइव मार रहा है, एक बहुत अच्छी कैच ले रहा है, तो फिर आप भी ना एज अ प्लेयर कहते हैं मैं भी करूंगा, फिर सब में एक एनर्जी आ जाती है, हम भी करेंगे. सो फ्रॉम द गेट गो बिल्कुल बोथ साइड्स विल हैव टू फील रियली वेल. इंडिया ऑनेस्टली, अगर आप देखें, बिल्कुल
इंडिया की टीम की फील्डिंग है अच्छी। लुक, इंडिया इज द बेस्ट टीम इन एशिया। एशिया कप में बात हो रही थी ना, सेकंड बेस्ट टीम का नो मुकाबला हो डाउट। रहा था। क्यों हो रहा बिल्कुल। था? क्योंकि सच यही है कि एवरीवन नोज इंडिया इज द बिल्कुल। बेस्ट टीम इन एशिया। लेकिन इफ देयर इज एनी बिल्कुल। टीम इन एशिया that can beat India in a World Cup in a big game, it was also इट्स Pakistan. पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने तो कुछ नहीं करना, सॉरी टू बिल्कुल। से। श्रीलंका का रिकॉर्ड बिल्कुल। इंडिया के खिलाफ इन द बिल्कुल। लास्ट कपल ऑफ years has been also a little poor. 2023 वर्ल्ड बिल्कुल। कप में उनको इंडिया ने 2 बार 50 पे भी आउट किया था। सो द लास्ट सेवियर ऑफ ऑल द एशियन बिल्कुल। टीम्स इज पाकिस्तान। पाकिस्तान आखिरी सेवियर रह गया। बिल्कुल। So again, it's gonna be a big match. So before we end this off, we're gonna बिल्कुल। move to our prediction segment. But for our new viewers tuning in, welcome to Dream Media Radio. I'm your host Mahar Iqbal, and my good friend Zain Bai is also one of our guests today. We're about to end our Yep. show, but we are gonna do a prediction segment. So Zain Bai, I've loved your analysis so far. So I'm gonna ask you, simple question: who's winning the match tomorrow, in your opinion? Definitely Pakistan will win the match tomorrow. Yeah. Okay, I got That's what I say Pakistan. because as a Pakistani, obviously. I'll be honest with you. I'm not even being biased here. I think Pakistan will win Yeah. solely on the fact that we've played matches in Sri Lanka, and because for Yeah. the first time in a very long time, our spinners are great. We found the right combination Yeah. of Shadab Khan, Usman Tariq, Abrar Ahmad. So That's and right. then how can I forget Mr. Saim Ayub, Mr. Low Look Shot? वो भी उसको भी जब bowling देते हैं वो अच्छी बिल्कुल। bowling करता है. So I think that बिल्कुल। combination alone with or without fast bowlers, we have a strong bowling unit. And ये बहुत rare बात है क्योंकि बिल्कुल। काफी अरसा हो गया हमारे पास अच्छे spinner नहीं थे. So that's my I think Pakistan also wins it. And then again, our openers are strong too. And you know what? Salman Ali Agha has been looking very good in form. He's been getting out cheaply, but I think Yeah. tomorrow Yeah. expect a big innings from him as well. Who is your top बिल्कुल। scorer from both teams? For both Yeah. teams, I think Saibzada Farhan. Okay, that's a good one. Saibzada Farhan, yeah, from Pakistan. And from India. Hmm, it depends. I think Abhishek. मुझे I लगता है think मुझे चलो ऐसा जल्दी लग आउट रहा है। कर देंगे। मुझे लगता है जल्दी आउट हो जाएगा। बेचारे का पेट भी लेट्स खराब सी। था। उसको रश किया वापस। आई डोंट नो इफ दे रश्ड हिम, लेकिन उसका पेट काफी खराब अच्छा। था। वो शायद आउट ऑफ फॉर्म हो जाएगा उसकी वजह से। अच्छा। आई थिंक सो। आई कुड बी रॉन्ग। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो कल अच्छा खेलेगा, अच्छा अच्छा परफॉर्म करेगा। और पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान, नो डाउट कि वो अच्छा स्कोर कर सकता है और करना भी चाहिए। वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में है और ऑब्वियसली इंडिया खेल चुका है वो पहले, तो बॉलर्स को और काफी सारी चीजें वो समझता है और बड़ी मेच्योर इनिंग्स खेलता है वो। या I'm gonna go against my better judgment and I'm gonna say पाकिस्तान का बाबर कल टॉप स्कोरर होगा बाबर आजम। I don't know why. I don't have a आजम logical also। reason why other than the fact हम्म। कि उस बेचारे की स्टोरी लाइन ये है। देखें, उसकी बेइज्जती बहुत हुई है यार। ऑस्ट्रेलिया ने भी उसकी बहुत बेइज्जती की थी बिग बैश में। लेकिन जो भी है ना, जितनी भी यार उसकी फैंस बेइज्जती कर रहे हैं ना, एक बात मुझे क्या उसकी लगी है, उसने मीडिया पे कभी गंदी बात नहीं की, उसने कभी किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। जो भी है ना, आप पास देखें पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो मीडिया में थोड़ा ज्यादा बोलना शुरू कर देते हैं, जो दूसरे प्लेयर्स को डाउन करते हैं। अहमद शहजाद का एग्जांपल है, उमर अकमल का। हम्म। बाबर आजम की मुझे क्या हम्म। अच्छी बात लगी, जितनी भी उसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना, उसका कम से कम डिसिप्लिन का इशू कभी नहीं आया। दूसरे प्लेयर्स आप देखें ना हमारी ऐसा ही है। टीम में, उनको थोड़ा जिंदगी में मिलता है, डिसिप्लिन उनका आउट द विंडो चला जाता है। आई हैव अ बिल्कुल फीलिंग, ऐसे ही है। मैं देखिए स्पिरिचुअल थोड़ा हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है इसकी इसको इसको एक मिलेगा मोमेंट। कहते हैं ना अंग्रेजी में नहीं, एक मिलना फ्रेज चाहिए है, ऑब्वियसली। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, एवरी डॉग हैज इट्स डे। बाबर आजम ने या जबरदस्त बिल्कुल। किया है इतना। देखिए, इंसान है हम्म। आखिर में, किसी की इतनी बेइज्जती हो रही हो, इतना आउट ऑफ फॉर्म हो, ही स्टिल शोइंग अप, ही स्टिल ट्राइंग हिज बेस्ट। बिल्कुल। मुझे लगता है इंशाल्लाह कल बाबर ने अच्छी इनिंग्स खेलनी है, मैच विनिंग इनिंग्स। होप सो। हम भी यही चाहते हैं कि बाबर आजम अच्छा खेले और पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और इंडिया। एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली जो अच्छा खेलेगा, आई थिंक वो डिजर्व करता है, आइदर इट्स 100%। पाकिस्तान और इट्स इंडिया।
जो मैं अच्छा खेलेगा, क्योंकि हम बैठे हुए क्रिकेट देखने के लिए, राइट। हमें जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया, राइट। ऑनेस्टली तो जेन भाई, ये इसी जो वर्ल्ड तरीके कप है से ना, हर मैच का मजा आया सो फार, हर मैच का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें अच्छा मैच देखना है, हमें एक तो हमें वन साइडेड मैच नहीं देखना। ठीक या है, हमें दोनों तरफ की टीम से एक अच्छी, हमने एक आस लगाई हुई है कि नहीं इंडिया नहीं, भी अगर अच्छा खेले, पाकिस्तान जीत रहा है पाकिस्तान ना भी तो अच्छा वन खेले। साइडेड हो जाए, हमको परवाह नहीं है। लेकिन मैच का मजा नहीं आता ना। नो, यू वन राइट, साइडेड तो पहले पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर मैच देखने में मजा नहीं आता, क्योंकि माहिर, ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमने अपनी पूरी रात काली करनी है और सुबह 8:30 बजे उठ के मैच देखना ही है, क्योंकि हमारे पास ये सुबह आ रहा है, राइट। तो अगर हम जाग के ये मैच देखेंगे तो ऑब्वियसली फिर मैच अच्छा होना चाहिए। अगर मैच वन साइडेड होगा या बिल्कुल ही बेकार, या फिर बारिश अगर ना खुदा ना खास्ता हो जाती है, तो ऑब्वियसली फिर वो मजा ही नहीं रहेगा ना उसके अंदर। मुझे अभी भी तो याद है ना, आई थिंक कैरी ऑन, कैरी ऑन। मैं सऊदीया में रहता था तो 2015 का वर्ल्ड कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में। सऊदीया में मैच होते थे सुबह 5 बजे, मैं सारी रात नहीं सोया। मेरे वालिद सही साहब कह बात रहे है। बेटा सो जाओ, बस सो जाओ। मैंने बोला नहीं, मैच हो रहा है। वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की, उन्होंने 300 मार दिए। पाकिस्तान की बैटिंग अच्छा। आई, 1 रन पे 4 आउट थे हमारे। सारी रात नहीं सोया था, बाप से बेइज्जती भी खाई थी उसके बाद। लेकिन मैं ये बोल रहा आपको बिल्कुल ऐसे ही। मुस्ताकिन, मुझे लगता है इंडिया की टीम से टॉप स्कोरर होगा ईशान किशन। उसका फॉर्म काफी अच्छा जा रहा है, और हम्म, वो एक इंडिया का हम्म, ऐसा प्लेयर है जिसकी टैलेंट बहुत हाई है, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन आई डोंट थिंक दे गिव हिम द रिकग्निशन ही डिजर्व्स, एंड आई थिंक ऐसे बड़े मैच बिल्कुल। में वो दिखाएगा कि वो है अच्छा प्लेयर। आई हैव अ फीलिंग, आई थिंक अभिषेक नहीं उसको दिखाना खेलेगा। चाहिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसको चांस भी इन्होंने कम दिए। मैंने जो ऑब्जर्व किया है इंडियन टीम में, ईशान किशन को इन्होंने इतने कोई चांस दिए नहीं है। मैंने उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादातर आईपीएल के मैचेस में काफी देखी है, इसने और इंटरनेशनल उसमें पे उसने बहुत 200 भी मारा जबरदस्त हुआ है परफॉर्म सर। किया है। इसने जेडर बिल्कुल डबल ऐसी है। सेंचुरी। लेकिन ज्यादातर जो मैंने ईशान किशन को देखा है, उसको बाहर बैठे हुए देखा है। मैंने टीम में बहुत कम देखा है कि उसको इंटरनेशनली टीम में लेके जरूर गए, लेकिन उसको मैचेस बहुत कम खिलाए। तो इंडिया को चाहिए कि ईशान किशन को जो है ना वो ऐसे चांसेस दें, ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो वो यंग है, और दूसरा उसका 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 जो टेक्निक्स है वो मुझे बड़ी पसंद है। वो अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा प्लेयर है, ऑनेस्टली मेच्योर लेवल पे आके खेलता है। इंडिया की टीम में एक ऐसी वाहिद वाहिद तो नहीं, कपल ऑफ टीम्स होंगी ऐसे जो अपनी टैलेंट पूल से 2-3 टीमें बना सकती हैं, विनिंग हाँ टीम्स। बिल्कुल। तो बिल्कुल इट्स ऐसी है। हार्ड टू मेक द लास्ट बिल्कुल सिलेक्शन ऐसी है। विद इंडियन टीम, क्योंकि हर कोई प्लेयर रेडी है, एनीवन इज रिप्लेसेबल। इनका जो स्काई है इसको भी बिल्कुल, रिप्लेस कर सकते हैं, एवरीवन इन बिल्कुल, इंडिया। देखिए ने कोहली को रिप्लेस अगर कर दिया है, और उसके बगैर बिल्कुल। जाके एशिया कप पूरा जीत के आ गए हैं, तो जीत क्या एनीवन आ इज गया, सही बात है। बिल्कुल पॉसिबल। ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। Anything next prediction I wanted to do is who will be the top wicket taker for both the teams. Who you can start off. Who do you think will be top wicket taker for Pakistan tomorrow and then India? Tomorrow, I think Usman Tariq, with no doubt, Okay. right? Or from India, I think in the bowling line, Akshar Patel. I think पाकिस्तान अक्षर पटेल को इजीली खेलेगा। मुझे अगर फकर जमान और या उसका मैचअप हो जाए ना, तो फकर जमान का जो बिल्कुल स्टाइल है ना, वो खेल उसको सकते हैं, इजीली एक्सप्लॉइट कर लेगा। खेल खेल सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रिडिक्शन तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि बैटिंग पहले कौन कर रहा है या टॉस कौन जीत रहा है पहले, राइट। हम्म। तो ये एक बहुत मेजर चीज होगी किसी भी टीम की बॉलिंग लाइन के लिए। अगर पाकिस्तान सेकंड इनिंग में बॉलिंग करता है, तो ये बेनिफिट पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन पे जा सकता है, और अगर यही सेम चीज अगर इंडिया के साथ होती है, तो ये बेनिफिट उनको उनको जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि जब फर्स्ट इनिंग होगी और फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग पे होगी, तो आई थिंक कि वो उस वक्त थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकती है फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग लाइन। लेकिन सेकेंड इनिंग में विद नो डाउट, अगर बारिश नहीं होती, तो फिर ये 110% स्पिनर्स जो हैं ये इजीली विकेट निकाल लेंगे सेकेंड अगर इनिंग सर में। फोरकास्ट है भी ना, पाकिस्तान शुड प्ले अकॉर्डिंग टू द फोरकास्ट, बैट वेल, क्योंकि डकवर्थ लुइस भी जब आता है वो कभी कभार जीती हुई टीम को हरा सकता है, हारी हुई टीम को भी जिता सकता है। तो डकवर्थ के बिल्कुल ऐसे। अंदर अच्छा खेलना पड़ेगा, स्ट्रेटेजाइज करना बिल्कुल। पड़ेगा, रन रेट हाई रखनी पड़ेगी। नहीं, मैं मुझे सिंपल है इसकी स्ट्रेटेजी, बहुत बहुत सिंपल है। इसकी इसकी कैलकुलेशन ऐसी बनती है कि अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करता है, तो एटलीस्ट पाकिस्तान को चाहिए कि 70
राउंड अबाउट जो आपका पावर प्ले होता है, तो पावर प्ले में एटलीस्ट 60-70 रन आपने बनाने हैं। ये रन आपने छोड़ने नहीं है, और लीस्ट टू लीस्ट विकेट आपने विकेट जो है वो अपनी नहीं देनी है। एटलीस्ट अगर जाती भी तो एटलीस्ट आपकी एक विकेट जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। उसके अगर बाद विकेट जो, दे भी रहे हैं ना, तो इज्जत से हाँ आउट हो भाई, इज्जत से हाँ आउट हो। ये ना हो कि ऐसा ही, डरी हुई बॉडी लैंग्वेज से आउट हो। नहीं, जाओ अपनी शॉट पूरी खेलो, बाउंड्री पे कैच बिल्कुल छोड़िए, हम फैंस फॉरगिव कर लेंगे। लेकिन अगर आप डरी सही हुई बात है। बॉडी लैंग्वेज के साथ खेल रहे हो ना इतने बड़े मैच में, तो आपको पाकिस्तान टीम में होना ही नहीं चाहिए। ये उस्मान नहीं खान होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे मेरा ही है। मेरा जो मोस्ट विकेट टेकर होगा हमारी टीम से, या मुझे लग रहा है अबरार अहमद कुछ कर लेगा कल। मुझे हम्म, इज अ वेरी कंसिस्टेंट बॉलर, एंड उस्मान तारिक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अबरार अहमद हैज द एक्सपीरियंस नाउ, ही इज बीन प्लेइंग लॉन्ग हाँ इनफ। ये तो है, टेस्ट क्रिकेट ये भी बात खेलता है, ये हर फॉर्मेट का प्लेयर है। पहले इंडिया के अगेंस्ट खेल भी चुका है वो, उसके वो अच्छे खेल भी परफॉर्मेंस चुका भी है, रहे। परफॉर्मेंस, यस बिल्कुल। एग्जैक्टली। हम्म, इंडिया की टीम में मैं सिराज से थोड़ा हूँ कंसर्न। वो बहुत अच्छा हम्म, बॉलर है, जस्ट लाइक नसीम हम्म, शाह, उसकी भी बहुत मूवमेंट बिल्कुल, होती है बॉल की। तो बिल्कुल वो होती भी है। हमारे बैट्समैन को आउट कर सकता है इजीली। वो साहिबजादा को आउट कर सकता है, आराम से कर सकता है, लेकिन मार भी खा सकता है। हम्म, सो आई थिंक सिराज विल बी द जेंटलमैन फ्रॉम द इंडियन टीम। If India is to do well, I will have Siraj being one of the catalysts for India. With that being अच्छा। said, who will be one surprise performer from each team? जो out of syllabus वाला performer कौन हो सकता है? आई थिंक कल साइम अयूब जो है ना, वो एक सरप्राइजिंग हो सकता है पाकिस्तान के लिए। और फॉर इंडिया आई थिंक मुझे मुझे नहीं पता, मैं कोई सोच के नहीं बोल रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि कल जो सूर्य कुमार है। आपकी आपने मेरा जवाब इस मामले में स्टील किया। मैं असल में मुझे ना, ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों। नहीं, मैं आपको देखिए, उसने ना पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप बहुत किया है। यू कैंट फ्लॉप बिल्कुल, फॉरएवर एंड यू कैंट डोमिनेट बिल्कुल, फॉरएवर ईदर। लॉ ऑफ बिल्कुल, एवरेज भी एक चीज होती है। तो बिल्कुल ऐसे। दैट्स व्हाई मैंने यू ये नेवर भी नो। बोला कि बाबर भी कल चल सकता है ना, क्योंकि ये हाँ, देखिए होता है, जो बंदा काफी अरसे से नहीं चल रहा होता उसके दिन आ सकता है। You're बिल्कुल आ one सकता day है, बिल्कुल आ closer. सकता Whenever you're failing, you're one day closer to success. है, बिल्कुल ऐसे ही है, So बिल्कुल ऐसे ही mine from the Pakistani team, our surprise performer, I would have to say Abrar. No, not Abrar actually. A surprise का मतलब ये है कि आप expect नहीं कर रहे उसको ना perform करना। है। फहीम अशरफ कर लेगा फिर से, मुझे लग रहा है। ठीक है उसकी। फहीम अशरफ को करना भी चाहिए, करना चाहिए, बट इन अ सेंस के अगर फहीम अशरफ तक बात आए तब। मैं तो या चाहता हूँ उससे पहले ही कहानी खत्म हो जाए। हमारा टॉप ऑर्डर भी अच्छा खेले, मिडिल ऑर्डर भी हमारा इतना खेले कि फहीम अशरफ की बारी नहीं आए, और हम 200 प्लस कर लें। व्हाट डू से? 200 बन जाए तो फिर तो पाकिस्तान में मिठाइयाँ खा रहे होंगे मजा सब आ लोग, जाए, मिठाई खा है रहे ना? with that being said, सही। इंडिया का सरप्राइज परफॉर्मर मुझे लगता है, देखिए उनकी टीम में ऑलरेडी ऑल स्टार्स भरे हुए हैं, लेकिन शिवम दुबे भी बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन आई एम गोना हैव टू गो, इट्स अ हार्ड वन। हार्दिक पांड्या को तो सरप्राइज नहीं कर सकता। आई एम गोना से हार्दिक पांड्या, आई एम गोना से हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो बॉलिंग भी अच्छी करता है, वो फिनिश भी कर सकता है, एंड आई थिंक उसकी उसकी ही इज अ गुड फिनिशर, नो विद नो डाउट। आई एम अ बिग हार्दिक फैन ऑफ पांड्या जो है हिज, वो, इज कंप्लीट हाँ प्लेयर। बिल्कुल। नहीं, वो कंप्लीट पैकेज है पूरा, जो इंडिया के पास अभी है। आई थिंक अगर हम मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली के बाद अगर कोई इंडिया के अंदर ऐसा बैट्समैन है जो कंसिस्टेंसी अपनी शो करता है हर मैच बोरिंग में, मैच, और बोरिंग मैच। जो फोकस्ड प्लेयर है फॉर द क्रिकेट, तो मुझे वो लगता है हार्दिक पांड्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे पसंद भी है, बॉलिंग बैटिंग आउटस्टैंडिंग, और आप कह सकते हो कि मैच फिनिशर है वो एक तरीके से। आपका वो अटैकिंग लाइन जो आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाया हुआ है, तो वो पूरा मैच आप हार रहे होते हो, वो जीत के दे देता है आपको पूरा मैच। तो वो प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर जिसको आप कहते हो। तो आई थिंक इंडिया के पास जो है ना, ये एक की है हार्दिक पांड्या के वजह से, कि उनकी टीम जो स्ट्रांग बनती है, वो आई थिंक हार्दिक पांड्या का उसमें बहुत बड़ा रोल है, Okay, कर last सकता है वो। question of the night, sir. Is it gonna be a single-sided match or is it gonna be a close finish? It should be a close finish. Yeah, it I will be. think so. I think so too. You Yeah, know what? yeah, Because yeah. both sides on paper are very, very Exactly. good. Exactly. This I is don't think so कि probably ये एक साइड जाएगा। this is probably our best Pakistani squad we've had to date, with the exception of Usman Khan. I think other than that, everyone is सही बात है। very informed, very good. India has a good team as well. I think it's going to be a close finish. So yeah,
With that being said, Zain Bhai, thank you so much for your time. Thank Ladies and you. Thank gentlemen, you. don't forget to check out Dream Media. Dream Media is one of the best radio stations in Canada. Alongside that, they also hold one of the best events in Canada. They help and promote small businesses, and every event of Dream Media and Cocktail International is always full. Our vendors love it, our customers love it, we love it. With that being said, we hope to see a handshake from both nations, and we really hope that after the match, us Indian and Pakistani brothers and sisters still love each Yeah. other. We always will. And Yeah. in the end, sports always beats politics. With that being said, Assalamu alaikum, namaste, and Sat Sri Akal. Okay.